I rode the bike on the north face of Mount Everest. What you see is a ghost town. There's nobody there. Yes. So it's very eerie like that. Yeah, I've done so many skydives. I'm looking forward to doing base jumping. Base jumping is wingsuit. Base jump is learning how to jump off a cliff. So me and my partner were scuba diving. We're going to this place called the Grand Canyon in Agati के पास है. By the time we were halfway into the dive, I could just hear a hissing sound. We're not even 3 minutes out of the dive. There's no air in her tank. When she did that, I gave her mine. Now इतनी सी हवा हम दोनों को use करनी है. You start doing India, bro. You'll fall in love. It is so dynamic. Tell me some places that people don't know of that they can visit. Most favorite places, and we'll show you also. Cool. It's called. How are these Northern Lights, etc.? Bhai. So tell me a story you've never told someone. My first skydive was a lie. What do you mean lie? अब भाई वैसे आदमी कह रहा देखो मैं बता दूं क्या है सुनो मेरी बात सुनो आदमी कह रहा देखो भाई यार मैं तो कब से ट्रैवल कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन इट केम वे लेटर माय फर्स्ट स्काईडाइव ओनली फॉर वीडियो क्या होता है इंस्टाग्राम ने बच्चों की करप्शन कर दी है ये दिक्कत है हाँ आई थिंक हाँ ये मैं इसमें एग्री करता हूँ कंटेंट ने गेम खराब कर दिया है बट यार क्या होता है ना स्काई डाइविंग में बिफोर यू गो फॉर योर फर्स्ट सोलो स्काई डाइव जब तुम सीखने जाते हो यूजली दे एक्सपेक्ट यू टू डू एटलीस्ट वन टैंडम कि यार पता होना चाहिए कि झोंका कैसा लगेगा हवा का बिकॉज जो पहला जंप है ना उसमें यू विल जंप विदाउट एनी थिंग लाइक two people will just hold you and they will jump with you off the plane. तो तेरे वो body की feeling you should need to have. So they expect you to at least do one tandem. तो भाई मुझे पता था यार वो tandem 30-40 हज़ार की पड़ेगी और मेरे को वो फटका झेला नहीं जाएगा in terms of cost. So I made this whole thing in my head where I knew that I'm gonna lie it through. So this lie started for like at least 3 महीने तक झूठ बोला है मैंने सबसे अपने आसपास से कि मैंने tandem करी हुई है. My first skydive when I jumped off a plane I had no experience of Ever jumping off a plane. And you wanted to do this? Why exactly? चुल मतलब चुल तो ठीक है भाई देख चुल first of all I relate to chul but there is an element of unsafety. Yeah. Are you aware? Yeah. Yeah, bro. वो ही है थोड़ा I won't deny that. But I think मेरे लिए वो था कि यार skydiving सीखने के लिए चाहिए थे 5 लाख जेब में थे 4.5 लाख तो ना फेल हो सकता था ना रिपीट कर सकता था जंप ना सच्ची में वो टैंडम कर सकता था 35-40 हज़ार रुपये कहाँ से आने थे और तो मुझे पता था अगर ये 4.5 लाख रुपये खर्च ढंग से नहीं हुए तो मैं लटक जाऊँगा तो इट वॉज अ फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ नेसेसिटी ऑल्सो ऑब्वियसली इट वॉज अ बिग बंदी आई विल नॉट डिनाई दैट बट दैट्स व्हाई आई डोंट इवन टेल दिस स्टोरी टू एनीवन बिकॉज ऑब्वियसली एज एन इन्फ्लुएंसर और इन्फ्लुएंस गलत है ना कि भाई झूठ बोल के कूद जाओ भाई कितना गलत इन्फ्लुएंस कितना गलत है यार Oh God, man! I think that is where that's one lie which finally Prakhar ki. Damn, let's go, man! On Prakhar show only. Wow, bro, man. I actually am very curious. I think you do a good job. Walk me through what goes on in someone's head or your head when you are on the plane, when you're getting on the plane, when you're going to jump off a plane. Walk me through that. I think सबसे पहली चीज़ होती है कि Quick reality check. About 80% of you are in a full-on situationship with this podcast. You show up every week, you watch the episodes, you drop thoughtful comments, but you still don't subscribe. Look, I'm not here to sell you anything. That's not how this works. But if you walked away from any of my episodes with a thought that stuck, or if these conversations have stayed with you, then subscribing is how you keep it going. It's one click. And in return, I promise you, me and my team, we promise you that we will bring you the best conversations that stay with you. So hit that button and let's keep it going. What I love to do is I love to revise. The first revision I always do is look, locate, peel, pop. Look, locate, peel, pop. Look, locate, peel, pop. This is वो देखिए ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. Sure. उसमें वो लटका होता है. ऋतिक रोशन लटका होता है while he's practicing and ऐसे खींचता है तो when they're practicing that is your safety procedure if your parachute now the thing is why do you do it as a thing because it is not about when it happens you will look and locate your muscle needs to go like look locate peel pop look
and you're suddenly you cut away your primary shoot, you pop your reserve and you करके खुलता है. So I love to do that homework every day before every jump until I'm not sitting in the plane. So while I'm just going in my head, I'm like, look at peel pop, look at peel pop. I know what to, because I'll tell you also, you can't pull this before this. So let's say if you pull this before this, you will just pop your reserve without even cutting away your primary. तो वो primary already खुला हुआ है, reserve खुल गया और primary हवा में है, तो तेरी लग गई. अब तो 2 डायरेक्शन में उड़ेगा. नहीं, अब वो दोनों टैंगल होंगे. अच्छा, फिर कुछ चलेगा ही नहीं. हाँ. तो उसका सेफ्टी भी आगे समथिंग कॉल्ड RSL, अगर तो ये खींच दिया गलती से तो वो RSL क्या करता है, प्राइमरी को फिर भी काट देता है. वो होता है आजकल शूट में सेफ्टी के लिए. बट द राइट वे इज टू फर्स्ट कट द प्राइमरी शूट, देन डिप्लॉय द रिजर्व शूट. देयर इज अ प्रोसीजर. तो आई ऑलवेज लाइक डू दैट. आई लाइक टू मेक अ फ्लाइट प्लान. प्रॉब्ली लेट्स से मेरे साथ कैमरा फ्लाइट जा रहा है, मैं वीडियो शूट कर रहे हैं, कुछ बहुत कूल 3 दोस्त कूल स्टफ करने वाले एयर में. So what we would do is generally we will just do a demonstration run of what we will do in the air on the ground. So there's a dummy दरवाजे पे जाके खड़े हो जाते हैं, and then we'd practice कि पहले कौन निकलेगा, पीछे कौन आ रहा है, because even a separation of 0.5 seconds, चूंकि प्लेन तेरा horizontal velocity पे जा रहा है, so अगर मैं यहाँ से कूदा and 0.5 सेकंड के बाद तू कूदा तो प्लेन ऑलरेडी यहाँ से यहाँ पहुँच चुका था, और मैं ऑलरेडी यहाँ से यहाँ पहुँच चुका था, तो जब तू कूदा तो तू कहीं और ही है. So everybody has to exit together. So that muscle memory, how we'll communicate, हवा इतनी चल रही है, घंटा समझ नहीं आ रहा, वहाँ कोई ऐसे तो नहीं है, चलो ऐसे तो होने नहीं वाला. So you're just looking into each other's eyes and your body motion. So you will go like out, in and out. So you will like, जैसे बंदा ऐसे करेगा, you all will like go with him. So you're doing that body thing together, and you know out, in, and this second time the guys goes out, everyone goes out. Oh shit. So you do that muscle practice कि यार तू और मैं, you and I in sync. So if you're jumping with me, you and I should be in sync to do that together. Now, are we holding each other in that exit, or are we just going parallelly and we will fall and we will hold each other? कैमरा वाला कहाँ होगा, तो कैमरा वाला कहाँ लटका है, तो प्लेन का दरवाजा तो एक ही है, तो कैमरा वाला कहाँ खड़ा होगा, तो कैमरा वाला प्लेन के बाहर निकल के ऑलरेडी लटका हुआ है पीछे की तरफ, और वो तुमको देख रहा है, उसके सर पे कैमरा है. अब थिंग इज यू कांट होल्ड एनीथिंग इन योर हैंड, तो कैमरा वाला इज नॉट होल्डिंग अ कैमरा, कैमरा इज ऑन हिज हेलमेट, इतना बड़ा सा, तो वो बस वो तुमको देख रहा है. उसका काम है तुम्हें देखना, अगर वो तुमको देख रहा है तो कैमरे हो तुम, ठीक है. तो वो एक मिनट भाई, एक मिनट आपको ढंग से देखने तो दो. और तो ये सोचना वो बाहर लटक गया तो वो भी करेगा ऐसे, ओके आई एम रेडी, तो फिर जो क्यों दे रहा है वो अलग बंदा है, तो वो उसको देख रहा है, तो वो करेगा आउट, इन, तो वो भी छोड़ेगा. तो सबको छोड़ना है एक साथ, राइट. और सोचिए हवा भी नहीं हो रहा है, ये जमीन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस हो रहा है, और लोग काफी फनी लगता होगा भाई. इट्स द फनीएस्ट भाई. मगर वंस यू बिकम अ स्काई डाइवर, यू नो इसके बिगर तो काम ही नहीं चल रहा. हाँ, मतलब दिस इज रिहर्सल फॉर D-Day. Yes, so you do that, you do your, then there is something called breaking away procedure. अब तू 4 दोस्त साथ में कूदे, पर तुम साला एक साथ पैराशूट नहीं खोल सकते. तुम ऐसे हो, पैराशूट खोल दिए, कहाँ जा रहे हो कुछ नहीं पता. सो यू हैव टू डू अ ब्रेक अवे प्रोसीजर. सो लेट्स से सो यू यूजुअली जंप फ्रॉम अ मीन सी लेवल की तू 13 से 15,000 फीट सी लेवल से कूदेगा. तो ऑलमोस्ट एट 6,000 फीट प्लस यू विल ब्रेक अवे. मतलब यू विल डू, okay, you will do like this, like okay, we are done, then everybody will turn 180 degree and go away. And is it easy to turn? It's like swimming, bro. It's like water. You're falling like this, you want to go right, press. Just हाथ ऐसे करना है. हाँ, हवा दवा, बस हवा दबाना है. हाँ, हवा दवा उधर जाएगा. But the thing is the game is symmetric. So if you're pressing हवा here, you can't. So it's like very simple. अगर तू गिर रहा है तो symmetry करेगा. If you ever, let's say, just pull your hand down, then you will flip like that because your hava will hit here. There's no hand to resist, and then you will flip upside down. Oh shit. So it is like symmetric swimming. So your legs also have to be in the same place. हाथ भी तेरे same जगह पे होने चाहिए. And you have to fall very symmetrically. So let's say now we have to turn back. So what I'll do is, we all are here. You're a skydiver with me. Right. Your hands are out. Your hands out. Now I'm like okay, done. Cut away. Then you press. I press my right hand. No, you don't press your right. You press your right. Yes. Okay. Because you have to turn right. I have to turn right. We turn 180 out. Then we raise our hand up to stop, and then to go straight. हाथ दोनों पीछे towards your ass, and then you become like a rocket and you go out. Damn. So then you go, and then you don't open. That thing between you and me is so consistent. When we turn, I will do 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, and then I'll break, and then I'll deploy. So there's 1,000, 2,000 is 1 second. Okay. So instead of saying 1 second, I will say 1,000 is ideally 1 second. So if I say 1, 2, 3, 4, 5, it's not 1 second. But if I say 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, that's seconds. So we know that we need a separation of 5 second तू जाएगा, 5 second मैं जाऊँगा. So at least we'll have a separation of good 15-20 meters before we deploy. Got it. And different altitudes we open shoot at. Like you will say, okay, I will deploy my shoot at 4,500 feet. I will be like, okay, I'll deploy at 4,000 feet. Because when you deploy your shoot, you will go up.
Initially, हाँ, you'll go Right, up. So right. I will still fall. Huh. So when I open, you can't be above me or beside me. I'll pop into you. Sure. So that's the reason why you do that. हाँ, So that and you anybody go in. above or behind knows that तू खोलने वाला है. So you will do cut. It's important, भाई. हाँ, right, तू right, सोच ना, right, हाँ. 2 minute shoot में tangle हो गया. हाँ. तो तू तो मरा ही मरा, मैं भी मरा. Right. And in these moments in skydiving, there's a thing that you have to let go. Let's say you and I tangled and you tangled into my shoot. Now there's no way you're going to be safe. I have to cut away and say bye to you, and that's the hardest thing one could probably do. I have no people उन्होंने किया, they have let go of their friends, they tangled and they couldn't do anything. So they just cut the parachute So off? just जो भी बचा हुआ है वो तो cut away करेगा. Once you cut away the parachute, you will get out of your primary shoot and you will deploy your reserve, but you will see your friend go यार. But नीचे वाला बचेगा, ऊपर वाला नहीं बचेगा. हाँ? Depend ना कौन किसके shoot में कौन tangled है. किसके shoot में फंसा है? कौन किसके शूट में टांग. शूट तो यार एक थोड़ा चादर ही है ना. Right. अब वो चादर में तू लपट गया एक बार तो थोड़ी ना वो घर में भी कोई तो मैं चादर में लपेट दूंगा तो निकलने में 2-3-10 सेकंड तो लगेंगे ना. आसमान से गिर रहा है तो उतनी वेलोसिटी में. You just like How long is the dive total? भाई usually like if you jump 15,000 feet से. 15,000 feet से if you're jumping I'll say 55 second free fall. 55 second you'll get a free और fall. उसके बाद you open. Open your shoot and then 2.5 minutes to land. So like 3 minutes overall. 3 से 4 मिनट. And so this is what you're doing before you're getting in. You're doing your flight plan. You're Yes. talking about what you're going to do. You're yes, rehearsing it. Yes. and this lock Yes. Then you sit in the plane. हाँ. And then the game begins. So the toughest part about the thing is when the plane is taking off. First 1,000 feet climb is the toughest because plane का दरवाजा वैसे खुला हुआ होता है, plane उस टाइम का ही होता है, and you cannot exit the plane. So let's say अगर 1,000 feet तक plane climb किया, कुछ problem हुई and plane goes down, you're not exiting the plane, you're going with the plane. So first 1,000 feet you're like mentally there like कोई बात नहीं, उड़ेगा ये उड़ेगा. Because after 1,000 feet तो कुछ हुआ तो सब कूद जाओ. जो पैराशूट तो है, कुछ ना कुछ तो हड्डियाँ टूटेंगी, मरोगे नहीं. So I think वो होता है right before so you just keep repeating stuff. Muscle memory आ जाती है bro, but I like to be more aware about what's happening because as I told you, like I still don't have a camera thankfully in skydive, so I'm always in the moment what I'm doing. तो हाँ वो चल रहा होता है. And obviously when the fun starts when your canopy opens. तो अभी तक तो गिर रहा था, पर जब तेरा पैराशूट खुला वो नीचे भी तो लाना है, हवा भी तो है, parallel wind directions XYZ, you have to land safely in the landing zone against the wind. You can't land into the wind because you have to brake. तो हवा अगर यहाँ से है तो तुमको यहाँ से लैंड करना पड़ेगा क्योंकि you have to, because the canopy will catch your wind, right? So that's how you brake. If you are into the direction of wind, you're flowing. If you brake, the canopy won't catch shit. हाँ ठीक. So you will not brake right. You will go flying. So you have to, मतलब the sign starts. You're looking नीचे, wind direction क्या है, sock कहाँ पे, wind sock नहीं होता वो जो orange color का होता है. हाँ, right. That's called wind sock. So it tells you the direction of the wind flight. कि हवा कहाँ उठ रही है. और उसमें sections बने होते हैं which tells you certain like इतनी इतनी air speed है. So you need to be aware. So there's a lot of science you do before you take off. So that's all pre-flight check. You do it in your head. And one thing I missed was you do your gear check thrice. Once you wear it, you check it yourself. Second time, before you sit in the buggy which takes you to the plane, you check it again, instructor checks it. Third time, and before you load on the plane, another instructor checks it. You have to make sure your gear is checked thrice. Remember I told you अगर वो strap नहीं लगा हुआ है तो खुल जाएगा, वो लोगों से actually हुआ है. So now it's like a thing which has to be checked thrice. Everything, like सारे pins लगे हैं, सारे straps लगे हैं, तेरा pilot chute अंदर है. Now you might have a question, what if you faint? तू गिरा, कूद रहा है, Sure. bird लगा समय धैड और तू बेहोश हो गया. Sure. Something called an AAD, automatic activation device in your chute, which after a certain, let's say अगर मेरा AAD set है 2,000 feet पे, 2,000 feet पे मैंने deploy नहीं किया parachute और मैं certain velocity पे जा ही रहा हूँ, then it will do a small blast in my reserve and it will open the reserve flap and the reserve will come out by itself. अच्छा. So it will still save the day. Interesting. Yeah. How many first timers have you taken up on a plane? Almost 20. And so walk me through what they are going through in that moment. Bro, first timers का ना, उनकी फटती होगी भाई यार. जब प्लेन ऊपर चला जाता होगा तो उनको फिर मैं अपना बताता हूँ ना. फर्स्ट टाइम क्या बताऊंगा, अपना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बताता हूँ. मैं झूठ बोल के गया था दिस पॉडकास्ट स्टार्टेड, ठीक है. तो मुझे घंटा आइडिया नहीं था कि व्हाट इज द मसल मेमोरी ऑफ फ्री फॉल. मुझे उतना पता था कि मुझे उन्होंने जो ग्राउंड में सिखाया था कि भाई तुम्हें करने 3 प्रैक्टिस पुल. बेसिकली क्या होता है, जो पायलट होता है ना वो शूट के पीछे होता है. सो यू हैव टू टच इट एंड फील इट वो है कहाँ, सो दैट व्हेन यू हैव टू ओपन इट यू कैन होल्ड इट इन वन गो. सो मसल मेमोरी बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है. भाई मैं पहली बार दरवाजे पे खड़ा हुआ, उन्होंने बोला कि उसने 2 इंस्ट्रक्टर थे, एक राइट में लेफ्ट में. द मेन इंस्ट्रक्टर इज इनसाइड होल्डिंग यू लाइक दिस, शोल्डर पे पैंट पे, और एक यहाँ से पकड़ के खड़ा होता है. दोनों एक दरवाजे के बाहर है, एक दरवाजे के अंदर है, और तू दरवाजे के ऊपर है. इन दैट मोमेंट व्हेन आई स्टूड देयर, पहली बार तो मैं घुटनों में गया और मैंने पहली बार मुंडी बाहर निकाली. शक करके यूँ हवा लगी ना,
और like and I had that helmet. They gave me that proper Indian helmet, नहीं होता टोपी वाला, right. with that glasses with the pointy thing. तो मुझे पूरा थूक बह रहा है. हाँ, और in that moment ना मुझे पता है मैंने झूठ बोला है, ठीक है, right. और मुझे अब लग रहा है क्यों बोला. अब भगवान खुद प्रकट हुए, पूछे क्यों बोला फिर. Bro, मैं वहाँ खड़ा हूँ and both of them now are waiting for me. So I have to be like okay, then I'll look in and I'll be like okay, and they'll be like okay, and I'll look out, I'll say okay, and they'll be like okay, and then I'll do out and out. तो वैसे मुझे दोनों को क्यों देना है कि मैं तैयार हूँ. अब in that moment भाई जब मैं वहाँ खड़ा हुआ ना और मुझे हवा लगी, तब मुझे ना reality hits. Why? Because when you stand on the door, you're literally on the door, you can see the plane coming from outside, you look down and you don't see shit. 15,000 फीट पे सब कुछ इतनू सा दिखता है. So नीचे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा. And I think in that moment I was like, do or die. And you know, what I believe in is, if in a moment तुम्हारी फटती है, just stop thinking. Thinking is where the cue dies. So I held it. I looked in. I said, okay. I said, ready. He said, okay. I said, outside. I said, instructor, okay. He said, okay. I said, Jai Mata Di. Out, in, and I let go. All three of us started falling. I'll show you the video. I have the video also with me. Wait, nah. Actually, send it. अरे send क्या मैं तेको. I'll just show you also. You also feel it once, भाई. हाँ, उस पे लगाएगा ना भाई. My first job. यार क्या यार ऑडियो रोक ले वरना कॉपीराइट आएगा. That's my first jump, bro. रुक, ओए मैं तेरे को हिमांशु इसकी प्रोफाइल पे ही है ना. हाँ ब्रो, फीड पे जाना मेरे, फीड पे गो टू माय पोस्ट. Which one? ये वाला, फर्स्ट वाला, ये राइट वाला. this one. ओपन दिस, गो टू द थर्ड carousel. Yeah, this is हाँ ये वाला. So that is my first jump of my life, भाई. Do you see दोनों साइड इंस्ट्रक्टर है. हाँ वो देख मैं निकल गया हूँ. ठीक. So now do you see he's doing that finger आगे. Right. He's asking me to straighten my legs so that दोनों टांगे सिमेट्रिक हो. ताकि हाँ उल्टा सीधा ना हो. तो मुझे ऐसे कर रहा था. And in that moment, bro, what happens is right after when I jump, suddenly that, you know, terminal velocity, when a person falls, that terminal velocity is going at 280 kilometers per hour. That's terminal velocity. ठीक है. When the first time your body will feel that, गाड़ी में बैठा है वो एकदम 200 पे भागी है. भाई बहुत डर लगता है. Acceleration that happens, skydiving में ऐसे नहीं होता. क्योंकि तू plane से कूदता है, because you already have that inertia going forward, you will fall at a gradual inertia, but that acceleration happens slowly till you hit that peak, right? And that's when you feel it. भाई मैं कूदा, ठीक है, और जैसे वो peak हुआ, मेरा दिमाग off. Like, you know, that reality hits you on so much speed, your mind gets an overload of information. I can imagine, dude. Sometimes तू सो रहा होता है, suddenly तेरे को लगता है तू गिर रहा है, तू झटका मारता है. Right. That is happening at 1000x in this moment. That moment my instructor held me and he shook me like that, and I'm like, fuck, मैं गिर रहा हूँ. And then when I woke up, I'm like, okay, मैं गिर रहा हूँ. And I'm like, and suddenly I remember my exercise. I'm like, okay, what I have to do is circle of awareness. Look at the horizon. Look at Alti. Okay, for 13,000 feet. Left side, 13,000 feet. Okay, check. 13,000 feet. Okay, check. Practice pull one. You get into job. You don't have time. You have 55 seconds, else you fail. और तो मैंने क्या बताया, मैं पैसे पहले नहीं थे फेल होने के. भाई जान एक्स्ट्रा थी, जान बहुत थी मेरे पास. 2-4 बार मर जाता तो कुछ नहीं होता, पर पैसे यार. भाई ब्रांड दिलवाओ इनको. क्या आप हंस रहे हो साइड में? ब्रांड दिलवाओ इनको भाई. हाँ ब्रो, आदमी खतरे से खेल रहा है, बस पैसे नहीं थे यार. यार अगले कर्ज में देसी आदमी की प्रायोरिटी कितनी गलत सेट है यार हिमांशु. Yeah bro, and that's but I really didn't fail even one jump. Damn. I thought it's normal. It's not. People I cannot imagine people how with it's me normal. have failed twice, thrice, paid double because they keep failing jumps. What does a fail look like in this? Yeah, the first jump is like 45,000 rupees. No, what is a fail as in like what happens? Let's say I had to do my checklist was I fall, I do circle of awareness, I look at the horizon, I know that okay I'm falling. So if you're falling, how do you know you're falling straight? Gravity That's is a good falling. point. Right? Yeah, right. Yeah, so you'll have to look at the horizon. Huh. If the horizon is level with your eye, That means you're falling straight. Else you're falling ulta. So Ulta as in you could be falling अच्छा उल्टा. Like हाँ, because it's a fall only ना. So until you, because आसमान तो ऊपर और नीचे दोनों जगह है ना, और नीचे बादल हैं, तो तुझे ऐसा लगेगा कि तू ऊपर थोड़ा ना जा रहा है. तो it is such a strange feeling. Yeah, it's a very like you're not aware. It's a very disorienting Yeah, feeling. Right. So you have to look at what you know, and that's the horizon. That's the only thing that stays. Then जैसे पहले जब में होता है 3 बार तुम्हें अपना पायलट जो होता है, पायलट शूट, again I repeat, pilot shoot is your shoot which you throw out, which pulls out the main canopy out. Got it. Yeah. So you need to know where it is on your container. It is right at your ass. जहाँ तेरी पिछवाड़ा है उसके ऊपर होता है, वो छोटा सा ball होता है. So when you go for it, you can't just fall and grab it and throw. No, you have to go symmetric, as I said. So then this hand goes back, this hand comes front. Oh right, okay. So you have to do a symmetric movement. So when you go back, you have to go symmetric. You have to hold it and you have to come back. You don't have to pull it.
why you do symmetric is because when you throw your pilot chute, for example, this is your body. अब तू गिर रहा है, तूने हाथ पांव खोले हैं, तो आइडली ये जमीन है तो तू ऐसे आएगा. अगर तूने सिमेट्रिक नहीं खोला तो तू ऐसे करके तूने अगर पैलेट शूट फेंका तो जब तुम ना वापस हाथ लाएगा तब तेरी बॉडी जर्क मारेगी, इन दैट यू कैन फ्लिप. अब तू सोच तेरा पैराशूट खुल रहा है और तू फ्लिप हो गया तो फंस गया हमारा. सो यू हैव टू ओपन इन द मोस्ट स्टेबल पोजीशन एंड दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू टीच यू. कीप योर लेग स्ट्रेट, कीप योर आर्म आर्क्ड, कीप लुकिंग फॉरवर्ड, प्रैक्टिस. So that when you open your chute, you have to be the most stable you have ever been in your life in the air. So वो muscle memory है. अब उनको अगर लगेगा कि तूने मार दी, तू stable था ही नहीं, वो सीधे बोलेंगे fail. Why should he can't risk it because you only have 8 jumps. Fail and pass is a certificate you get after. No, it is progression to the next jump. So the first progression is AFF, accelerated free fall. पहले क्या होता था ना, static line jump होती थी. पैराशूट को रस्से पे बांधते थे, बोलते थे भागो कूद जाओ, बंदा प्लेन से गिरता था, 2 सेकंड का फ्री फॉल होता था, रस्सी खींचता था पैराशूट बाहर और प्लेन देखा जो फौजी कूदते हैं. कूदते जाते हैं, पैराशूट खुलते जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक लाइन जंप. देन टू मेक इट मोर प्रोग्रेसिव व्हाट दे एडेड वाज एक्सेलरेटेड फ्री फॉल where 2 jumper jump with you so that you learn how to free fall. Got it. And deploy your chute. तो उसकी जो प्रोग्रेशन है उसमें नो अवेयरनेस वाज वेरी क्रिटिकल कि यार बंदे को पता होना चाहिए कि पैराशूट है का साला. अब तूने पैराशूट खोल भी दिया तो when you coming down somebody is flying your canopy, no you are flying your canopy. तो तेरे यहाँ पे एक वॉकी टॉकी लगी है, नीचे तेरा इंस्ट्रक्टर ऑलरेडी पहुंच चुका है, वो इतनी स्पीड में नीचे गया है, वो तेरे को बोलेगा ओके राइट फ्लेयर, ओके लेफ्ट, ओके कम स्ट्रेट, ओके नाउ हाफ फ्लेयर, ओके फुल फ्लेयर, ब्रेक एंड यू लैंड. सो ही विल गाइड यू ऑन योर लैंडिंग. अब इसमें तूने कई बार फक मारी वो तेरे को फेल कर देगा. ही विल नॉट इवन थिंक ट्वाइस बिकॉज यू नो व्हाई योर लाइफ इज इन हिज हैंड. बिकॉज या सो वो 8 जंप्स में if you repeat the first 3, they're the most expensive because 2 instructors come with you. The next 4, only 1 instructor go with you, and your 8th jump is your solo jump. Got it. Yeah, that's how it happens. Damn. Yeah. So it's very interesting, भाई. It's very interesting. वो दिखता मज़ेदार है भाई, मगर ना वो जो progression है ना, where you find that mindset, it is where the game lies. And trust me, भाई, Indians में बहुत कूदा है, बस it's just that our upbringing है. Mine was very different, but it's very protective environment ना. माँ बाप कुछ करने नहीं देते, कुछ बोलो तो नहीं ये नहीं करो. Death is the only डर they have. So I think once you get into it, you understand यार गोरे इसलिए कर रहे हो जिंदा है because there's a process to it. So if you follow the process, you'll stay alive. And how long have you been jumping now? 5 years? 4 years, 4.5 years. Yeah. How many jumps has it been? It's 187 और पिछले साल मैंने पीठ उड़वाई थी तो उसके बाद से 8 महीने से सर ज़मीन पे बैठा हूँ, तो 8 महीने से कूदा नहीं, वरना अभी तक आई शुड हैव हार्ट लाइक 250-300 तो होने चाहिए थे. You've done 187 jumps and on the last one I broke my back. वो अलग कहानी है. I rode like 18,000 kilometer in 3 months. So it on a bike? No, everything. Started with a bike to Tibet. So मैंने बाइक चलाई इंडिया से तिब्बत to main Lhasa. I went to Lhasa on a bike and I came back on a bike. ठीक है, it was 4,800 kilometers. उसके बाद मैं गया न्यूजीलैंड. So where is this 4,800 kilometers? Sorry. I drove through India, Nepal से मैं गया Tibet. हाँ. And I drove to Lhasa. Lhasa is inside Tibet. No? Inside Tibet, the capital of Tibet. जहाँ पे दलाई लामा का मेन पोटाला पैलेस है, where the Dalai Lama comes from. मैं वहाँ गया जहाँ पे पिछले सारे दलाई लामा के वो बने हुए हैं अभी भी pyramids there, where their last tombs there. Yeah, that's the thing. Tombs are still in the Potala Palace. Can you search this? I'm actually very and then so you did 4,800 kilometers. 4,800 kilometers Tibet in and out. So basically I rode the bike on the north face of Mount Everest. As when you go to Mount Everest base camp, you will go from Nepal na to south face जाएगा. That's a 12-day hike. On the north face you can ride a bike to the base camp. I have heard, मेरे को actually अर्जुन वाजपेयी was telling me very similar stuff. कह रहा था चाइना की साइड से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हिमालयाज में हम कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते. जो हमारे लिए एक ये सेंस होता है ना भाई पहाड़ में है तो रिमोट होगा. Yes. उन लोगों ने 5-star मतलब शहर बना रखे हैं पहाड़ में 8,000 मीटर 7,000 मीटर. Absolutely. 8-7 ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, बट ही वाज लाइक कि ब्रो तू इमेजिन नहीं कर सकता कसिनो पार्टी चल रही है 6,000 मीटर पे फुल पावर है ना. बट द थिंग इज वाजपेयी गया कभी चाइना साइड तिब्बत गया, वो बोल रहा था बिकॉज इट्स क्रेजी. What you see is a ghost town. हाँ, right, exactly. That's what he also said. He's like, वो पूरा शहर बना होगा, but it's a ghost town. Yes. There's nobody there. Yes. So it's very eerie like that. Yes. Right? Yes. Wow. But tarmacs, लिटरली तो ऐसा लगे तो चंडीगढ़ में है. So they are like grids बने हुए हैं. हाँ. You've been to Ladakh, Leh? I have, yes. Yes. So just think Chandigarh in Leh. That's Tibet. Okay, wow. So they have like grids, red lights, बड़े red lights, cross sections, zebra crossing, people following rules. काफी crazy है. और मतलब आसपास वैसे ही पहाड़ जैसे ले के आसपास. Yeah, it's Ladakh with Chandigarh setup.
Damn. मैं नेपाल से गया, पूरी सड़कें टूटी हुई थी, ठीक है, खड़े होकर चला रहे हैं बाइकें. एज सुन एज आई क्रॉस द बॉर्डर एंड एंटर टिबेट, अगले 4000 किलोमीटर टारमैक, एंड टू एंड टारमैक. और चलाने में मजा आएगा. मतलब लग ही नहीं रहा था कि लद्दाख टाइप रोड पे चला रहे हो, मतलब थोड़ा तो टूटे. तो हम लोग मजे लेने के लिए ऐसे ऑफ रोड घुसा देते थे. क्योंकि मेरे साथ गोरे भी थे ना, गोरों को चलती हम लोग एक दो बाइक भी तोड़ी. अच्छा, इस चक्कर में, सिर्फ मजे लेने के चक्कर में. क्रेजी. अच्छा, that was quite fun, but yeah man, तो मैंने वो किया बाइक राइड. फिर मैं साला वहाँ से वापस आया एंड आई वेंट टू न्यूजीलैंड. वहाँ मैंने कैरावान ली एंड आई ड्रोव अनदर 3000 किलोमीटर्स इन साउथ आइलैंड. तो मैं बाइक पे था, वहाँ से मैं गाड़ी में चला गया. फिर मैं वापस आया, 5-15 दिन की रेस्ट मारी और सीधा इंडिया टूर पे निकल गया. 16,000 किलोमीटर अक्रॉस इंडिया on my car. In your car. Yeah, in my truck. So I drove it from Palampur to Kanyakumari to back to Palampur. और यार उसमें ना वो क्या हुआ, it started with a small pain under my knee and I kept twisting my back to so much level कि मेरा मतलब slip disc 3 जगह, disc bulge 2 जगह, muscle atrophy अलग हो रखी है. So it just put me on a hyperdrive of muscle breakdown. तो फिर मेरा 8 महीने कटा बिस्तर पे, बढ़िया टूटा मस्त. आई एम स्टिल एट इट, ओनली चलता है लटक लटक के टांग, बट इट्स लाइक यू हैव टू, यू जस्ट रियलाइज व्हाट यू सेड ना. आज तक मेरे साथ हुआ नहीं. आई ऑलवेज टू कीप ट्विस्टिंग माई बॉडी. मतलब मैं कभी पहाड़ चढ़ गया, कभी नीचे, कुछ भी चल रहा है, बट नाउ आई रियलाइज कि हाँ यार, दिस इज अ मोर्टल बॉडी, राइट. यू गॉट टू रिस्पेक्ट इट, गिव इट टाइम टू ब्रीथ. आई थिंक वो वाली चीज़ बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई मेरे लिए पर्सनली. आई हैव अ वेरी टाइनी एंड स्टूपिड एग्जांपल इन कंपैरिजन. एक बारी ना मेरा हाथ, I was grown up enough, I was like maybe 21-22, कांच के आर पार हो गया. And I had to get ligament reconstruction और tendon reconstruction. तो proper surgery वर्जरी हुई. उंगली लटक गई होगी आज भी, मतलब ये वाली उंगली पूरी बंद नहीं होती. And this finger is a, मतलब अब कहीं कांच गिरता भी है ना तो मैं सीधा वहाँ उठता हूँ 2017 में. And this is what it told me. I was like, उससे पहले तक क्या पता होता है ब्रो. बकचोदी कर रहे थे, किसी का बर्थडे था, वो अंदर बाथरूम में बनता, उसके मुंह पे केक मारना था भाई. इस चक्कर में अस्पताल के बाद सर्जरी अलग भाई. तो वो जिस तरीके से वो स्नोबॉल हुआ ना, आई रियलाइज कि बॉस, या लाइक यू मीन यू नीड टू बी मोर केयरफुल विद योर बॉडी. एंड दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग हैज, आई डोंट नो व्हाट आई थिंक अबाउट इट. लाइक इट्स नॉट लाइक आई वांट टू डाई विदाउट डाइविंग ऑफ अ प्लेन. बट इट्स नॉट लाइक इफ मेरे को कोई फोन करके बोलता है चल कल स्काई डाइविंग, जा यार यहाँ से दिमाग मत लगा, स्काई डाइविंग चलते हैं. सो यू नो आई एम इन दैट वियर्ड ग्रे स्पेस. बट व्हाट इज योर एक्सपीरियंस 187 टाइम्स? Bhai, like, I'll be very honest with you. Mike. Yeah. I'll be. This is a perfect place, right? Yeah. But if you move up and back, just like carry. Yeah. I'll be very honest with you, bhai. Skydive just didn't happen on a great day, right? 2018 में I got my scuba certification. 2020 तक I got into snowboarding. So it was just a progression of अभी भी नहीं मरा. तो कहीं तो मरूंगा. Now the thing is, bro, वही बोलते हैं ना, there is no difference between you and me. मेरा बस टॉप लाइन बढ़ता जा रहा है क्योंकि मुझे पता है कि अभी भी नहीं मरा, तो और थोड़ा पुश आउट. आई टेल यू फॉर एग्जांपल, लोग स्नोबोर्डिंग करने जाते हैं, इंडिया की बात कर लेते हैं, गुलमर्ग चले गए. मुझ जैसा बंदा वर्स्ट के सिनेरियो हिमाचल कर लेगा. दिस विंटर्स आई वाज इन स्पीति वैली राइडिंग 4800 मीटर्स अकेला अपने दोस्त के साथ स्नोबोर्ड पे. वी आर राइडिंग स्पीति वैली. लोग जो वैली घूमने जाते हैं ऑफ रोड की गाड़ियां लेके, उसके सामने के पहाड़ पे मैं और मेरा दोस्त चढ़े हुए अकेले नीचे आने के लिए, और 2 बंदे हैं. पता है अगर चल पड़ा पहाड़, एवलांच आया, वी आर डेड. राइट. बट नथिंग इज चेंजिंग. एंड नाउ द थिंग इज, वर्ल्ड माइट कॉल इट स्टूपिड, बट फॉर अस इट इज लिविंग यार. अब वो जीने का मतलब ही इतना रीडिफाइन हो चुका है ना कि यू आर लाइक यार, मतलब ठीक है यार, स्पोर्ट्स सीखा है तो एक सर्टेन वही ना यार, जो गोरों में चलो होती है ना, दैट एड्रेनलिन रश. लाइक आई विल गिव यू, आई हैव डन सो मेनी स्काई डाइव्स. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग बेस जंपिंग. मैं पूरा पढ़ के बैठा हूँ भाई. मेरे को जाना है नॉर्वे, मुझे सीखना है बेस जंप. Base jumping is wingsuit? No, it's a jumping off. So wingsuit is base jump plus wingsuit. Achha, okay. But base jump is learning how to jump off a cliff. That's it? Yeah, that's And the you have a biggest parachute? science. Yeah, with a parachute, okay. but it is very technical. तो plane से कूदता है ना, तो if that is a plane and the plane is flying like this and you jump, you're flying 360 degree, you can go wherever the fuck you want. Sure. You jump off a cliff, ठीक है, you're only going one way, away from the cliff. Right. Anything happens and you turn towards the cliff. तूने पैराशूट खोला, हवा लेफ्ट टू राइट हुई, पैराशूट यू पक करके खोला, और जैसे वो खुला सीधे you are pointing now to the cliff. Then you're going in the cliff. Right. No matter what you do, you're gonna bang that shit and you're gonna die. Right. Death is imminent. So the technique of going away from the cliff is what's taught. Now the thing is, I would have never even thought about doing. मुझे goosebumps आए मैं बोल रहा हूँ. I would have never even thought about doing base jumping 4 years back. But just that top line of death keeps increasing. You're like, yaar, theek hai, I'm invincible till you feel like, fuck
now I'm not in. अब मेरी पीठ टूट गई है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ अचानक. हाँ भाई मेरे साथ यही है भाई, अब मैं पिछले 8 महीने से बस पीठ रगड़ता रहता हूँ. मुझे रियलाइज होता है जो मेरे आसपास के लोग हैं वो अपनी पीठ रगड़ते रहते हैं. मेरा इंस्ट्रक्टर था, मुझे एक चीज़ बोलता था कि देख तू बुढ़ा होगा ना, तू अपने one thing which is the most valuable in your whole body is not your liver, is not your kidney, it's not your heart, it's your joints. राइट. क्योंकि जो तेरे एड्रेनलिन रश है ना वो तेरे जॉइंट ही फक कर सकता है. और वो सत्य वचन है भाई, जॉइंट्स ने ही लगा के रखी है. अभी कभी कमर पकड़ लो, कभी घुटना पकड़ लो. क्योंकि अगर पेट खराब है ना तो फिर भी पहाड़ चढ़ जाएगा मरते मरते, मगर अगर घुटना खराब है ना तू नहीं चढ़ सकता वो पहाड़. पेट खराब में आई एम जस्ट गेटिंग दैट विजुअल इन माय हेड. दैट साउंड्स वेरी फनी भाई. कहाँ भागना है थोड़ी देर में. बट वो भी अलग आई vibe गेट है. इट दो, आई गेट इट, आई कंप्लीटली गेट इट. हाँ. And I found from hanging out with guys like Arjun and Mr. Jambal, Nice. both. Yeah, he's a legend. Both of them are legends भाई. Both are industry legends. और अर्जुन तो मतलब ऐसे बोलेगा कि यार देख ऐसा है, मैं तो थोड़ा सा ना पागल हूँ, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, मेरे तो थोड़े न्यूरॉन्स मर चुके हैं. वो बोलते बोलते एक्चुअली खो जाएगा. Absolutely. And then he'll be like, मैंने कहा था ना मैं पागल हूँ, and then he just carries Yes, on. Like yes. so, High there is a altitude, very bhai. real cost to this shit. High altitude does that. I'm telling you, भाई. Why do I have respect for these guys? Because these guys did it with not for the camera. Somewhere where this is where I get little like वो ना सेल्फ डाउट नहीं आता है साला मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं कैमरा के लिए कर रहा हूँ. Is this life like did I just climb Spiti because I had to shoot a video and show the world? Because when probably these guys climbed इनकी खुद की चुल थी. तो ना अब यही होता है भाई. When I look at these guys I'm like नहीं यार इन्होंने अपने साला अपने लिए किया भाई. 17 साल की उम्र में वो पहाड़ को चढ़ना which is one of the toughest in the world. और एक बार नहीं बार बार going through that mental state changes you as a human यार. मेरा बापू फौजी है. My dad was a part of Hawes high altitude warfare school. My dad did in 92. So my dad learned glacial climbing in the 90s जब साला सड़कें नहीं होती थी. And that's when my dad tells me यार हम लोग जो आइस वॉल चढ़ते थे साला गिरे तो पीठी टूटती थी, ना हेली रेस्क्यू ना कुछ. अब हम लोग बच्चों के चढ़ जाते हैं आइस वॉल, इक्विपमेंट अच्छा सब अच्छा. तो उससे समझ आता है यार these past generation I'll be very soon. These 2010 and before that भाई that was a real time of adventure. अब तो साला कंटेंट हो चुका है सब कुछ. अब सब कैमरा है. हाँ यार अनफॉर्चुनेटली आई टेल यू मरते भी वही हैं सब साला, मरते भी वही हैं. आई विल गिव यू अ फैक्ट. इन स्काई डाइविंग यू कैन नॉट कैरी अ कैमरा टिल यू डोंट हैव 200 जंप्स. रियली. Yeah, 200 solo skydives के बाद you're eligible to take a camera for your skydive. Why? सोच तू कूदने जा रहा है, अब तूने कैमरा लगाया सामने, ठीक है, यू आर वेयरिंग योर रिग, ठीक है. अब रिग में टेक्निकल चीज़ है, तो स्ट्रैप वैप बांधना है. अब तू कैमरा को दिखा रहा है, ओके दोस्तों मैं जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ. एंड इन दैट होल डिस्ट्रैक्शन ऑफ टॉकिंग टू द कैमरा तू अपना ये वाला चेस्ट स्ट्रैप को डबल लूप करना भूल गया. सो दैट मीन जब तू पैराशूट खोलेगा और तेरा पैराशूट तो खींचेगा, तेरा वो चेस्ट स्ट्रैप यूं ही खुल जाएगा. So you cannot lose attention like that. You can while you're skydiving, तूने अपना पैराशूट क्यों करता है, पैराशूट में समथिंग कॉल्ड अ पायलट, तो उसको फेंकता है, छोटा पैराशूट हवा में जाता है, फिर बड़ा पैराशूट को खींच के निकालता है बैक से बाहर. तूने छोटा पैराशूट फेंका पर तू डिस्ट्रैक्टेड था. अब जब तूने फेंका उसकी रस्सी निकली और वो उड़ी और सीधी जगह तेरे हेलमेट के कैमरे में घूम गई. अब तेरा पायलट तेरे हेलमेट में अटक चुका है, तेरा बैग से तेरा मेन शूट भी नहीं निकला है, एंड नाउ यू आर गोइंग फॉर योर डेथ. यू कांट इवन ओपन योर रिजर्व शूट बिकॉज दैट शिट इज स्टिल बिहाइंड देयर. तूने अगर रिजर्व खोला और वो उसमें टैंगल हो गया तो तू डेफिनेटली मरा. So they say that till up to your 200 jump, you build that muscle memory, that awareness that you don't get distracted. For example, you're a driver now. Agar tu, if you're driving at 150 today, you're still aware where to brake to stop it before it hits the roof. That didn't come because you've been driving for 1 year. That came because you've been driving for almost 10 years now. That's the muscle memory. So like you need to build that kind of instinct. Instinct, and that's why they've put that to solid state. But in India, पिक अप एनी एडवेंचर स्पोर्ट, यही तो प्रॉब्लम है. पैराग्लाइडिंग में भी जो मरे फिर से क्यों मर रहे हैं, कैमरा पहले निकला हुआ होता है, जो ग्लाइडर पहले भैया उड़ा रहा है उसको अपनी चुल है, वो कैमरा में देख रहा है, वो लेके भाग रहा है. प्रॉब्लम इज बीइंग क्रिएटेड बिकॉज ऑफ नॉट अनस्किल्ड पीपल, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन. दैट इज वेयर डेथ हैपेंस. तो वही है भाई. तो व्हेनेवर आई डू एनी एडवेंचर स्पोर्ट्स आई एम वेरी क्लियर भाई कि कैमरा बाद में ठोकेंगे, पहले देख लेते हैं सिचुएशन की जिंदा रहने वाली है भी या नहीं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स नाउ, पहले तो यार हम भी लाइक, एंड आई विल नॉट बी हिपोक्रेट, अपने आप भी बहुत गलती है. सारी जो मैं तेरे को ज्ञान दे रहा हूँ मैंने अपनी गलतियों से सीखा है. खुद की टांग टुड़वाई है कैमरा के चक्कर में तो हुआ है. बट दैट्स वेयर एडवेंचर एंड एडवेंचर कंटेंट हैज़ अ वेरी बिग distinction. Did you ever have one of those moments on a dive where you felt like, I mean not... I'll tell you bro, one of my biggest realization was I was diving with my partner and हम लोग थे लक्षद्वीप में. Now again, Lakshadweep, scuba diving in Lakshadweep Islands and Agati, I'm talking about the times when scuba diving was a very niche thing, right? तो Agati में उन्होंने अपना, एक बंदों ने अपना वो खोला, scuba diving school, Fana Dimkana. Have you dived ever before? No, I've never done scuba. Yes. No, never. Yeah.
I've chilled in the ocean enough. Perfect. So I have some sense, but I've never. Perfect. So you understand pressure, right? जितना नीचे जाओ उतना यहाँ water pressure increases, flan ढिमकाना. So me and my partner were scuba diving. We're going to this place called the Grand Canyon in Agati के पास है. It is a very narrow canyon which is 40-meter depth. 40-meter depth. Now on a first level of scuba diving certification, you are allowed to go 18-meter depth. On the second level of scuba diving certification, you're allowed to go 30-meter depth. On your deep dive specialization, you're allowed to go 40 meters of depth. 40 meters का मतलब है air pressure has now increased by at least 16 times. I might be doing the wrong maths. So the point where you enter is 40 meters and the point where you exit is not even comprehensible more than 100 meters. इतना depth increase होता है. Me and my partner are doing this and my partner has a camera, I have my camera and we are doing our own thing and we both are deep dive specialized. So we are not like some kids who are doing it, we're specialized. She was so into that moment with the camera that by the time we were halfway into the dive, I could just hear a hissing sound. अब तो 40 मीटर डेप्थ पे है, कुछ आवाज नहीं आ रही, आ रही है. I looked in the right towards Aprajita, my partner, और उसके ना मास्क में ना छोटे बबल्स आ रहे हैं. So usually when you breathe out, bubbles निकलते हैं, छोटे bubbles आ रहे हैं. I thought कुछ तो गलती हो सकती है. So I went to her and I shook her. And I'm like, so you just point, you can't talk, right? And then she suddenly realized, and she's like my mask, I don't feel comfortable in this mask. And अब मेरे को पता होता क्या है. Let's say this is a glass of, just explain technically. This is the air at surface level. Once you go 1 bar down, air compresses by half. 2 bar, 1/4. 3 bar, 1/8. So think at 40 meter depth, इतनी हवा इतनी हो चुकी है एक्चुअली. जो तेरे टैंक में अगर 100 हवा तेरे टैंक में 100 थी, तो at 40 मीटर अब तेरे मतलब लेट्स से अगर तेरे टैंक में 100 हवा है, which you could breathe for an hour, then at 40 meter that air can only be breathed for 5 minutes. Okay. So that's the kind of compression that's been created inside it. एकदम compressed है. And I'm like, I look back, there's a guide with us and I'm like, okay, cancel dive, let's start heading back. We're not even 3 minutes out of the dive. Her membrane gives up. There's no air in her tank. So the membrane of the regulator gave up. Acha. Because the membrane was faulty. Huh. Now you have a reserve pipe. Huh. So quickly she's like, and the person I am, I took out my reserve and she's like, no, I have. She took out her reserve and put it in her mouth. We started heading back again. It started working. And within 30 seconds, that also stopped working. Why? Because her tank had literally 0 bar of air. Huh. Sorry. The tank had 0 bar of air. In her unawareness of how much content she wanted to make, she didn't do the basic thing, and that was to check her air every 30 seconds. टैंक का हवा कितना है, टैंक का हवा कितना है, टैंक का हवा कितना है. नाउ एट 40 मीटर डेप्थ, जब हमारे पास सिर्फ 5 मिनट की हवा है ब्रीथ करने के लिए, I and Aprajita have to do an emergency exit from the water. And now the thing in ocean is you can't just come up like that. Because अगर इसमें हवा इतनी हो गई है, तो तेरे lungs में भी तो हवा इतनी हो गई है. Now your lungs are like this. If your lungs are normal like that, they're like this. दबे पड़े हैं. So if you suddenly come up full speed, they will expand without control. They're like a balloon. Your lungs are like balloons. So in your human body, there are only 3 places where the air: sinus, lungs, and few capillaries, right? So तेरे lungs में हवा है, तू एकदम से ऊपर आएगा तो हवा एक्सपैंड करेगा. आई टोल्ड यू प्रेशर कम होगा. बट अभी तो क्या है, तू ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ले रहा है, तो तू अपने चाहे तेरे लंग्स इतने दबे पड़े हैं, बट ह्यूमनली तू तो नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं दे रहा है ना अपने आप को. बट दैट ऑक्सीजन विल एक्सपैंड एज यू कम अप, सो यू कांट जस्ट करके कम अप. सो हैव टू कम अप वेरी स्लोली. सो द ascent rate is 3 to 5 meters a minute. That's the ascent rate. So you're 8 to 12 minutes still in there, huh? Still in there, and then you have a 3-minute safety stop on the top. So at 5 meters you have to go stay. क्या होता है, बिकॉज योर ऑक्सीजन इज, दिस इज नॉट प्योर ऑक्सीजन, इज ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिक्स्ड. तो तेरी बॉडी में ना नाइट्रोजन, देयर समथिंग कॉल्ड क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन सिकनेस. सो बेसिकली तेरे हवा में जो नाइट्रोजन होता है सिलेंडर टैंक में, वो तेरे बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है. सो यू हैव टू लेट दैट एयर लीव योर बॉडी ब्लड स्ट्रीम ऑल्सो. So for that you have to do 3-minute safety stop at 5 meters. This is the action you do. Okay. I might be saying some things technically wrong. सेफ्टी स्टॉप में नाइट्रोजन होता है, दैट माइट बी क्रॉस चेक, मतलब मैं बहुत टाइम से किया नहीं है, बट वो करना होता है. सेफ्टी स्टॉप तो क्रिटिकली फैक्चुअल चेक्ड है. सो नाउ इट्स लाइक 15 minutes अप एंड 3 minute सेफ्टी स्टॉप, 18 minute आउट. वी डोंट हैव एयर, शी विल डाई. सो
when she did that, I gave her mine. Now इतनी सी हवा हम दोनों को यूज करनी है. And that was a situation where literally either both of us would have died, one of us would have died, or we could have just said, fuck the air bubble, fuck the sickness, nitrogen sickness जो है, fuck that, whatever happens, exit मारते हैं. And that's what we did. So you made an emergency exit. We made an emergency exit. We came out popping out भाई, full power ही ऊपर गए हम लोग खींचते हुए. Because हवा नहीं है तो तू क्या करेगा safety stop? Yeah, right. तू कहाँ 3 मिनट सांस रोक के बैठा? कहाँ मतलब how will you? And there are 2 of us, not even one. And I'm not gonna stay behind, right? So I think that was that one situation which only realized, coming back to the thing, was because of not being attentive during the dive. Simple maths था भाई, air gauge देखते रहो. स्काई डाइविंग में सिंपल मैथ्स है भाई, ऑल्टीमीटर देखते रहे. तू गिर रहा है, ऑल्टी चेक कर, ऑल्टी चेक कर, ऑल्टी चेक कर. क्यों? तेरा सेफ्टी पॉइंट है 3000 फीट. 3000 फीट के नीचे खोलेगा, गलती से पैराशूट ने फक मारी तो तेरे पास ऑल्टी बचा ही नहीं है. तू डिप्लॉय द रिजर्व, यूर डेड. So being aware, that's what coming back to. And I think this is what has happened in Indian adventure sports scene, that people are more concerned about मेरी वीडियो निकाल दो than learning the sports in its truest form, to build that muscle memory where you know camera ho na ho, I'm going to see it through. That's the big difference now. Got it. Do you know why you are like this? Like, this is a question I ask all these adventure friendly, even travel friendly, like, because I think there are 2 parts of your personality. एक वो travel or explorer side है, Yeah. and then there is a adventurer side, Yeah. and those sides come together very often. Yeah. But they're 2 separate sides. I ask all of these people why they are like this, because it's a very alternate way of living. Yeah. Do you have an explanation? Yeah. For me, not sure. for everybody. Yeah. Yeah, भाई, I've been born and brought up in Fauji environment. तो ना मैंने शुरू से बहुत आई हैव नॉट बिन वेरी स्टेबल एज अ अपब्रिंगिंग. मतलब तू लगा ले 12 साल स्कूल, 14 स्कूल. सो 12 years of my schooling, I went 14 schools, went to engineering college, stayed in one place for 4 years, mind हो गया. The day I found travel, मैं खुश हो गया. ठीक है. सो वो जो instability थी शुरू से, that was always became a muscle memory of life. कि यार stability is awkward, instability is good. अगर consistent नहीं ना चीज़ें तो ठीक है, inconsistent बढ़िया है, पर consistent में problem है. Secondly was, bro, the access to adventure. ठीक है. At a very early stage, I started doing a lot of sports because of in Forge. I learned golf in very early. Like जो the sport people can't afford, मैं 32 रुपये में खेलता था. ठीक है. So sports हो गया, adventure sports हो गया, kayaking हो गया. मतलब मैं 13 साल का था, I was in a kayak because of Forge, because my dad के रेजिमेंट में kayakers थे. तो अर्ली एक्सेस मेरे लिए स्पोर्ट्स का, एडवेंचर स्पोर्ट्स का हमेशा रहा. तो इट बिकेम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. नाउ एज आई started growing up, it wasn't like I had to do it, but somehow with everything happening around, it just became normal day by day. But the fear of death, right, it was something which was never, not, I won't say inexistent, but मैंने कभी ये नहीं सोचा यार मैं मर सकता हूँ. मतलब वो पहला फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स नहीं मेरा कि यार ये कर रहा हूँ, दीवार पे चल रहा हूँ, गिर गया तो नहीं. मेरा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होगा, दीवार चेक कर लेता हूँ कैसी है, अगर लूज ना हो तो चढ़ जाओ. और मैं इसलिए कहानी सुना रहा हूँ, मैं उत्तराखंड में दीवार से गिरा था, सीधे खाई में गया था. ये कौन सी कहानी है बताइए. ये कौन सी कहानी है भाई? कुछ नहीं यार, उत्तराखंड घूम रहे थे मैं और मेरा दोस्त, ऐसे कंटेंट बनाने के लिए. पीछे पहाड़ अच्छा था, सुंदर सा, चढ़ गए एक दीवार के ऊपर, थोड़ा चेक किया. कंटेंट है भाई. कैमरा. मैं बोल रहा हूँ भाई, कैमरा ही सबसे, मतलब आई शुडंट बी सेइंग इट एज अ क्रिएटर, बट दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड द हार्ड वे आल्सो यार, कि देख लो यार एक बार ना, कीप योर कैमराज अवे, फिगर इट आउट, गेट यूज्ड टू द टेरेन, ब्रीथ द टेरेन. हाई ऑल्टीट्यूड, अर्जुन मस्ट हैव टोल्ड यू अबाउट ऑल्टीट्यूड सिकनेस. क्यों होती है लोगों को? अवेयरनेस ही नहीं है. सालों को लगता है सर दर्द हो रहा है, उल्टियाँ आ रही हैं, मोशन सिकनेस है, कुछ और ही चल रहा है. तो आई थिंक इट्स जस्ट अवेयरनेस ब्रो, जस्ट बीइंग अवेयर अबाउट वेयर यू आर, व्हाट यू आर डूइंग, यू विल बी अलाइव यार. इट्स नॉट, मैं सबको बोलता हूँ, इतना आसान नहीं है मरना. कुछ भी कर लो, इतना आसान नहीं है मरना. मरने के लिए उस मरने के जोन में जाना पड़ता है. वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ पुटिंग इट. मैं एक्चुअली आई स्टार्ट स्कीइंग अ लिटिल बिट. मैंने स्कीइंग नहीं करी. नाइस. मैंने रॉकीज और एल्प्स दोनों स्की की है, बहुत सही. और मैं बहुत बेसिक ही स्की कर पाता हूँ. बहुत सही. बट मैं कल ही परसों किसी को बता रहा था कि हम एक्चुअली वी वर वॉचिंग द टॉलेस्ट वेव्स. ओके. एंड
in general, I enjoy watching content like this. Yeah. तो I've been following waves in जो नज़ार जाते हैं सब लोग पोर्टुगल में एक बारी हर साल, ठीक है. Then हवाई में वो same crew घूमता रहता है, right? सही बात है. And so we were watching this and I was like, bro, surfing is very fun. Surfing से कई बार skiing पे गई and I was like, bro, एक रन भी लैंड हो जाता है ना स्की में, and you're coming down some of the most beautiful places on earth. The wind's on your face. You look to your right and left and mountains everywhere, चाहे snow-capped हो, चाहे कैसे भी. You just feel alive. Yeah. Like my fondest memory of skiing is getting down a very hard run and जो final stretch where you can accelerate and you just feel alive. Yeah. फिर वो सारी fall, वो सारा मुंह पे बर्फ पड़ना, all of that seems worth it. Yeah. How snowboarding like? I've never tried snowboarding. तो दिखा दो ना यार, खोल. Let me show you, bhai. Yeah, show me. I'll show you your Alps on steroids. अच्छा, ये गुलमर्ग में? नहीं भाई, अच्छा. स्पीति में. अच्छा, स्पीति में. हाँ, ये she just wouldn't let me sit idle. ये वाला वीडियो खोल यार एक बार. हाँ ब्रो, check this out. वॉल्यूम है हमारे पास. चलाओ यार. जिद खुद को खुद से मिलाने की, जिद दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों में स्नोबोर्ड करने की. इसी जिद को जीने के लिए मैंने रास्ता बनाया स्पीति वैली की तरफ. इंडो चाइना की खतरनाक सड़कों को पार करके पहुंचा एकदम सफेद सड़कों पर. यहाँ गाड़ी चलाना किसी एक्सट्रीम एडवेंचर से कम नहीं था. हर मोड़ एक नई चुनौती, पर मेरी जिद इस चुनौती से बहुत बड़ी थी. पहुंचे लांगजा गांव, जहां बुद्धा का आशीर्वाद लेकर शुरू की अपनी 3 घंटे की क्लाइंब. So we climb 13,000 फीट यानी 4,000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई, पतली हवा में सांस लेने की कठिनाई और एवलांच और क्रेवेसिस के खतरों से बचते बचाते पहुंचा टू द टॉप. वो कहते हैं ना, जब दिल में जज्बा हो तो मुश्किल भी मंजिल See, my नहीं board लगती. becomes keys and back to board. पर इस जज्बे के लिए एक इंसान जिम्मेदार है, और वो है मेरी माँ. That lady, she just wouldn't let us sit idle. हर समर वेकेशन पे हमसे कुछ ना कुछ करवाती थी. My mom made sure कि उनके बेटे हार्डकोर निकले उनके बापू की तरह. और ये रन है. Let's fucking go, bro. मतलब ये लोगों को experience, you have to experience something like this, bro. I still get goosebumps while looking at this moment, bro. I imagined it for 6 years. When the day I started learning. What's so hard about snowboarding the Spiti Valley? Bro, altitude A. अच्छा. Very less, very thin air. So climbing में तो फट लेती है. हाँ. ठीक है. B is it's not your power. It's your slit snow. It's ice snow. Because altitude इतना धूप उतनी लगती है उसमें, वो बर्फ गिरते ही जम के दिन में पिघलती है और रात को जम के बर्फ बन जाती है. So it's like you're riding concrete. Got it. तो वो बहुत तेज भगता है. जब आइस बन जाता है वो बहुत तेज भगता है. पाउडर फिर भी थोड़ा स्लो रहता है. एंड स्कीज में क्या होता है ना, स्कीज में you're facing downwards. Yeah. बोर्ड में you're facing sideways. So जब वो स्पीड पकड़ता है ना, तो एज मारता है, तो तू लिटरली वो एज फुल मार रहा है. मतलब लिटरली तू बोर्ड आया ना, तो तू पूरे बोर्ड को परपेंडिकुलरली एंगेज कर रहा है. राइट. और बिल्कुल हील्स पे जा रहा है. बिल्कुल हील पे. तो फिर से एग्जिट मार रहा है उस एज से, क्योंकि तुझे बोर्ड को अटकने नहीं देना है. सो इट बिकम्स वेरी टेक्निकल टू राइड आइस ऑन बोर्ड. एंड द थिंग इज, या एंड द फर्स्ट एंड द बेस्ट पार्ट इज, ब्रो, यू हैव नो आइडिया ऑफ द टेरेन. गुलमर्ग मैंने समर्स में देखा है, तो मुझे विंटर्स में पता है कहाँ पे पंगा हो सकता है. यहाँ घंटा आइडिया नहीं है. सो इफ यू आर राइडिंग एंड यू राइड अ क्रेवेस एंड इट ब्रेक्स, खत्म. Yeah. You just fall into it. So it was just me and my friend who was a FPV pilot. He's my best friend, but he learned to fly FPV. 2 of us doing this here. Literally death. एक वॉकी टॉकी के साथ चढ़े हुए हैं ऊपर. Let's fucking go. Life changing भाई. But so yeah, I'm telling you, bro, if you're into skiing and all of that, you start doing India, bro, you'll fall in love. It is so dynamic. Where do I go for skiing this winter? Bhai, start, if you want to do resort, go to Gulmarg. Start Gulmarg, bhai. I'll not kid, bhai. Gulmarg, Kashmir is the best snowboarding resort in the world, hands down. Really? Hands down. Which resort? अपना ये गुलमर्ग Gulmarg as a city? अच्छा, no, नहीं, ski नहीं. resort. अच्छा, उसका ski resort. Gulmarg is a small township Sure. above Srinagar, हाँ. which is only for skiing in winters. It has 16 bowls. Only 2 are green because India है, तो बाकी सब red zone है. Oh shit. जहाँ पे avalanches आते हैं सारे. समझ गया मैं. ठीक है. हाँ. But वो 2 भी तो राइड कर लेगा, तेरी जिंदगी तृप्त हो जाएगी, bro. Literally when you sit on the gondola, you gain an altitude, or you sit at 2200, 2400 meters. The top point where the phase 2 is, it's 4400 meters, भाई. Damn, 2 किलोमीटर का तुझे vertical ascent मिलता है. If you ride straight down, you're riding for good 45 minutes. Whoa. फिर बैठ और फिर चढ़ जा गुंडोला भाई में. ये तो सुन के भी थोड़ा डर लग गया, क्योंकि मतलब वो 15 मिनट में निकल जाता है यार आदमी. 15 मिनट की राइड बहुत लंबी लगती है यार. And bro, if you've ridden Alps, you've ridden like those like tracks, like slits. But यहाँ पे तो पाव मिलेगा. You're riding pure powder.
सो लाइक जापानी स्टफ नहीं होता जापान में लोग करते हैं, वो तो यहाँ मिलेगा भाई. अच्छा, मेरे को नहीं पता जापान में क्या करते हैं. So there's two type of riding. One is power riding, which is powder riding. हाँ, तो देखा होगा वो इतने कमर तक पाउडर होता है. ठीक ठीक ठीक. And then there is resort riding where they put those beaters to make those tracks. तो यहाँ पे दोनों है. You have power riding and you have beater riding. Got it. मैं समझ गया. Powder riding में your skis are kind of under the There's no powder. track. हाँ, there's no track and it's slower. No, it is safer. Safer. Because you won't fall, you won't hurt, but it is dangerous also because avalanche आता है. got it. गोलमार्ग में लास्ट ईयर कितने लोग मरे, उससे पिछले साल कितने लोग मरे, गोरे ही मरते हैं भाई. रशियंस आते हैं, बोल में मना करो मत जाओ एवलांच. बिकॉज हो क्या रहा है ब्रो, अर्ली विंटर्स में स्नोफॉल हो जा रही है, फिर मेन विंटर्स में स्नोफॉल नहीं हो रही, जो स्नो गिरी थी वो पिघल के स्लिट बन के लाइक इट बिकम्स अ स्लेट. फिर उसके लेट विंटर्स में स्नोफॉल हो जाती है तो उसके ऊपर गिर गई है. अब लोग वेट डालते हैं तो वो पूरा बर्फ़ का टुकड़ा निकलता है और वो पूरे वैली को लेके जाता है साथ में. So many Firangs die, bro. Last year, the bowl I was sitting at, once I came down and looked up, I got to know 2 people died in that same bowl where I was sitting 40 minutes back. That's crazy. Yeah, India में भी safe नहीं है उतना, but यार. But you say it's great. It's beautiful. Oh bro, but honestly, if you want to do it, भाई I'm in. मैं वहीं बैठा हूँगा भाई, ऊपर ही मिलूंगा तेरे को कहीं, तू आ जाना मेरा. I get a whole cottage to myself, full power भाई, sleeping bag. It sounds like the plan. मतलब मैं सर्दियों में सारे सफेद पहाड़, एक अच्छा कॉटेज, उसके अंदर आपने अपनी हॉट चॉकलेट बना रखी है. आप सुबह अब निकलोगे स्की करके, वापस आओगे घर, और स्नो में रहने के बाद जो खाना खाने का और चिल करने का मजा आता है ना, जब बॉडी पूरी दब चुकी होती है, आग लगी होती है, फायर प्लेस में थोड़ी थोड़ी विस्की चल रही होती है, ब्रो, नेक्स्ट लेवल सीन, नेक्स्ट लेवल सीन. बस ले आओ बर्फ. हाँ, बस ले आओ बर्फ, बस सर्दी करो भाई यार, ये बारिश का सिस्टम ऑफ करो. Oh God. Right, like there is the culture around skiing also, après ski and whatever, is so fun. Yeah. It's so fun. Yeah. The last time I went skiing, I was for I'd gone for Tomorrowland winter. Oh nice. Oh wow यार. So day कहाँ पे में था ये? Belgium में. No, this is in France. Okay, so nice. French Alps. Okay, सही है. And so you ski in the day and you party at night. Okay, nice. तो क्या हो रहा है अब, you have raving culture and snow culture mixing together. अच्छा. तो सुबह लोग खाना वाना खा रहे हैं, अपना स्की भी कर रहे हैं, अच्छा. तो सबने डीजे डेक भी लगा रखे हैं, म्यूजिक चल रहा है, सब नाच भी रहे हैं. सो इट्स अ वेरी, आई वाज लाइक दिस इज ग्रेट, लाइक दीस गाइस रियली नो हाउ टू हैव फन. इंडिया में हिमाचल में अगर सरकार करेगी ना इन्वेस्ट, तो हिमाचल में बहुत से रिजॉर्ट बन सकते हैं. मनाली के ऊपर कहाँ जाते हैं लोग स्नोबोर्डिंग? सेथन जाते हैं. राइट, आई हैव बीन टू सेथन बट इन द समर. जो मेरा दोस्त है ना एफपी पायलट, उसका घर है सेथन में. अच्छा, राइट, ओके. So he and I, that's where I first got the gist of what snowboarding is. 2021. सेथन में घर हैं कितने? 5, जब मेरे को भी गए हुए 3-4 साल, 5 साल 11. हो गए. हाँ, इतने ही घर हैं. और जो पहला लेफ्ट वाला घर है वो उसका है, दोस्त का. अच्छा ठीक है, मैं समझ विल्डरनेस गया. लॉज. मैं समझ गया कौन से की बात कर रहे हो. एक ही रोड पे 2 तरफ ही घर है. हाँ, इतने ज्यादा जो कुछ है पहला नहीं. घर लेफ्ट पे है, मैं वो समझ मेरे गया दोस्त कौन का सा है. कह रहे हो. अच्छा ठीक. तो हाँ, तो तब मैं गया था, फोन सिग्नल वगैरह भी नहीं आ रहे थे. हाँ, अभी भी नहीं आते फोन सिग्नल, क्योंकि उस टाइम गांव वाले पर अगेंस्ट इट, और अब कोई लगाने को तैयार नहीं है. भाई जी, मेरे को जाना पड़ेगा ना फिर लाने फोन बाद में. भाई यार, इतने मजे कर रहे थे. हम गए थे सेथन, वहां से हाइक करके सामने, और सीधा स्पीति में उतरने का प्लान था. पता नहीं कौन सा पास क्रॉस करते हुए, कौन सी पीक क्रॉस करते हो, बट वी नेवर मेड द असेंट फॉर सम रीजंस. बट हाँ, सो या इट जस्ट गॉट टू कमर्शियल यार. सेथन अभी भी, मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, सेथन इज स्टिल लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू स्नोबोर्ड इन. पीछे ना ऊपर सेथन डोम कर है, वहाँ चढ़ जाओ. इट टेक्स अराउंड 8 hours टू क्लाइम अप. ओके, सो यू स्टार्ट इन मॉर्निंग 8, यू रीच बाय नून 12-1, और फिर वहाँ से सेथन डोम से नीचे तक गाँव तक यू कैन राइड. इट इज लाइक 45 minutes ऑफ राइड. वेरी इंसेन राइड. इट्स वन ऑफ द बेस्ट राइड्स आई हैव एवर डन माय लाइफ. बट द ओनली प्रॉब्लम इज नाउ यार, क्योंकि बर्फ कम हो रही है ना, तो पहले अब पूरा क्राउड सोलांग से सेथन शिफ्ट हो रहा है. तो अब नाउ यू विल हैव लाइक विंटर्स में टूरिस्ट आ रहा है जा रहा है, एंड दैट भसड़ इज, मतलब आई हैव सीन सेथन एज अ वेरी क्वेंट विलेज, एंड नाउ आई सी सो मच. मतलब मेरा खुद नहीं मन करता वहाँ जाने का, तो आई मिस दैट नाउ. में सेथन में हम लोग बोल्डरिंग वगैरह भी कर रहे थे. Oh nice, oh wow यार, you do bouldering? A little bit. Oh nice भाई, very nice. यहाँ पे जो दिल्ली में ये लोग क्लाइंबिंग करते हैं ना, बिटवीन मांगर में. हाँ पता है मुझे. तो आई वुड हैंग आउट विद दोस्त फोक अ लिटिल बिट. ग्रेट यार. तो वो तो काफी, वो तो समझ निकालते हैं वहाँ बोल्डरिंग करते हुए. वो तो सुरू वगैरह भी करते हैं ना ऊपर जाके, सब सारे फेस्टिवल. सुरू फेस्टिवल वही करते हैं, कौन सा करते हैं? हाँ, सुरू फेस्टिवल ये लोग जो ऑर्गेनाइज करते हैं, यही लोग तो बैठे हैं मांगर में. अच्छा. तो इनके साथ ड्यूरिंग कोविड ऑल ऑफ दीज गाइज, बिकॉज नथिंग वाज वर्किंग, ये सब लद्दाख वगैरह से सब यहाँ आ गए थे. वाओ. एंड दे वर डूइंग क्लाइंबिंग हियर इन द अरावलीज. एंड तो उन्होंने सारे रूट वगैरह निकाल के, पुरानी बुक्स खोल खाल के, सब जगह डाल, रोप डाल के. सही. एंड सो यहाँ पे लोग क्लाइंबिंग करते थे. मेरे फ्रेंड्स भी कुछ करते थे. सो आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ दैट, एंड देन वी डिड बोल्डरिंग इन सेथन. बट इट्स फन. आई थिंक वर्किंग विद योर हैंड्स एंड योर लेग्स इन नेचर इज सुपर फन. या ब्रो, एब्सोल्युटली. आई थिंक नथिंग बेटर देन नेचर यार भाई. नेचर बेस्ट. और सच में पता है, लाइक द वे आई टेल पीपल, अगर शहर बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, अगर आप 10 दिन भी 5 दिन भी पहाड़ों में निकालो ना,
दिमाग ठंडा हो जाता है ब्रो. So much of your sleep, your dysregulation, your anxiety, a lot of this just goes away because you're closer to nature. Because पेड़ वेड़ आसपास ज्यादा हैं, हवा साफ है, उसी में बहुत कुछ ठीक हो जाता है. Traveling through Himachal, I've also just looked at places and I've been like, bro, यहाँ पे घर होता ना तो कितना next level होता. हमारे पहाड़ों से अच्छे पहाड़ हैं नहीं दुनिया में. We have that altitude advantage ना भाई. Have you been to all the other mountains like ये Andes देखे? Andes देखा यार मैंने. I've done French Alps, I've done Swiss Alps, I've done Himalayas, I've done left right center. उसके अलावा Andes तो नहीं गया यार मैं अभी तक. और Rockies वगैरह? नहीं. Rockies बड़े इंटरेस्टिंग है because you'll find एक तो इतने टॉल नहीं है and इतना ना like you'll see big mountains because there's not a lot of cover, right? So you can see the mountains in your horizon quite a bit, and you can drive, and they're like modern towns. wow. So I was driving through the Rockies, अच्छा. बिल्कुल ठंडा. You're just driving, सामने इतना विशाल पहाड़ आपको दिख रहा है. यहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ बीच में आ जाएंगे. You won't get that view. So Rockies are interesting, but nothing is like the Himalayas. The Himalayas are insanely beautiful. Blessed भाई to call Himalayas my home. In fact भाई, तो I think मेरे को तो पता है भाई your feeling. मेरा तो घर है तो. Truly. Just a blessing. I thank God every day to call myself a Himachali. That's where it starts and ends. Why? Traveling wise, what has been the most dangerous place you've traveled to within India? ये शर्म की हंसी है, देखो ध्यान से कैमरे पे देखो. भाई मेरी ना शर्म की मेरी हंसी है. फटती नहीं है. मेरी फटी थी पता है कहाँ? बिहार में. बंद करो ये झूठ बंद करो. भाई ने इतना सच बोल दिया. पॉडकास्ट बिल्कुल भाई. हाँ कहाँ थे? गया में थे क्या? नहीं रात को गोलियां चली थी. भाई मेरी फटी थी भाई बिहार में भाई. और वो डे टाइम में आई. रात की तो बात ही नहीं हुई यार. मैं आई डिड नॉर्थ ईस्ट. देख मैं नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स करके वापस आ रहा हूँ नागालैंड मणिपुर. हाँ मेरी नहीं फटी. राइट. जहाँ फटनी चाहिए एक्चुअली वहाँ नहीं फटी. वहाँ मज़ा आया. आई एम कमिंग बैक एंड सडनली माई फ्रेंड विद मी गोज लाइक यार भाई अभी ना बिहार तो पहुँच ही गए हैं तो लखनऊ की जगह वहाँ चलते हैं अपना ये वाराणसी. ठीक है घाट घूट देख कर आएंगे वहीं से घर चलेंगे. हिमाचल जाना था यार हमारे लिए तो सब रास्ता सेम ही पड़ता है. चलो चल ठीक है सॉर्टेड है. निकले वाराणसी के लिए भाई. रास्ते में ना एकदम से क्या हुआ कि मार्केट सी आई छोटी से. क्या है ना बिहार में हाईवे भी पतला ही है. मतलब इट्स नॉट लाइक एक्सप्रेस. अब यूपी में हो सडनली 6 लेन के हाईवे हैं एंड सडनली को 2 लेन. तो वो हाईवे बोल रहे हैं उसको ना. हमें आदत नहीं मसल मेमोरी हमारी वैसे बचती नहीं है. तो मैंने बोला ठीक है हम चला रहे हैं उस पर भाई. आगे क्या हुआ ना थोड़ा ट्रैफिक सा था तो हम रुक गए. 5 मिनट हो गए 10 मिनट हो गए. समझ हुआ क्या ऐसे मुंडी निकाली ना तो गाँव टाइप था. टेम्पो लगा हुआ था सड़कों के बीचों बीच और टेम्पो से ना एक बांस निकला हुआ था यूं कमिंग आउटवर्ड्स. तो आगे वाले बंदे ने 2-3 बंदों ने यू टर्न मार के काटा. तो हम थोड़े पास गए बांस के पास. तो हम खड़े हुए थे तो हमें समझ रहा है क्या. तो बंदा आया साइड से. हमने बोला भाई जी हुआ क्या है मतलब क्या हो गया यार. तो बोलते हैं कुछ नहीं दरोगा जी लल्लन को ठोक दिए. तो मैं समझ यार दरोगा जी लल्लन को ठोक दिए क्या बोला. तो मैंने इसको देखा क्या अरे दरोगा जी लल्लन को ठोक दिए. बंदा चलो भाई और मैं थोड़ी मुंडी यूं करी. टेम्पो को लिटरली आगे लल्लन पड़ा है. खून लल्लन है कौन? पता नहीं कौन है बट लल्लन पड़ा है. What the fuck? भाई that was the first time I've seen like a short dead body on the road. Traffic is not being stopped by police but a tempo and a bus coming out of tempo. I am driving a Thar. मैंने रिवर्स किया लेफ्ट को टर्न मारा जहाँ खेत दिखे ना खेतों में दे दी गाड़ी. मैंने निकलो यहाँ से. Somehow bro we saw bodies. We got out of there. This is day time 12 बजे. मेरी जिंदगी में नहीं फटी है भाई. मैंने वो देखा मेरी फटली. मैंने बोला लाइक बिहार में ना वो सही बोलते हैं भाई. वो गाना नहीं है बीड़ी चलाई ले नहीं क्या बोलते हैं वो आइए ना हमरे बिहार में. हाँ कट्टा बाजार में आइए ना हमरे बिहार में. भाई वो सी आई एम नॉट आई रिस्पेक्ट वन ऑफ सम माय बेस्ट फ्रेंड्स आर बिहारी. ठीक है बट भाई वहाँ का वाइब ना वो हवा में ही फटने वाला सीन है वहाँ पे यार. पहले वो सिचुएशन मतलब भौकाल दैट्स द वर्ड. भाई तू सोच ना बंदा ठोका हुआ है तो पुलिस नहीं खड़ी है. टम्पो में बांस लगा है. तू सोच रहे माहौल फिल्म का सिनेमैटिक सीन चल रहा था भाई. वहाँ भाई बहुत फटी ब्रो. बट कितनी सेफ बात है कि चलो पुलिस वाले ने ठोका है. अगर उल्टा होता तो और रिस्की रहता. नहीं वही और वो फिर पता चला कि पुलिस वाले ने ठोका भी. वार्निंग दे देने के बाद भी ठोका. पता नहीं क्या था पर वहाँ से भाई हम वाराणसी नहीं पहुंचे भाई. वहाँ आगे गए. आगे जाके गूगल फटी तो पड़ी थी तो वहाँ से अब बिहार पूरा क्रॉस करना था. तो मैंने उसको बोला ब्रो छोड़ यार थोड़ा ना सीन अब सेट नहीं लग रहा. तो बोलता ठीक है. तो हमने मैप पे डाला. नया बना था पूर्वांचल हाईवे.
पूर्वांचल हाईवे जो बना है स्ट्रेट टू लखनऊ, इट्स अ पूर्वांचल हाईवे एक्सप्रेस वे बना है, उस पर चढ़ाई गाड़ी भाई, रातों रात लखनऊ खींची है गाड़ी भाई। बिहार यूपी इट्स मतलब आई एम नॉट सेइंग यूपी स्टिल नाइस, बट मेरी तो फटी थी बिहार में। नहीं, बीच में यूपी के भी यही हाल थे। मेरे को याद है, मेरी फैमिली यूपी से है ना, हम लोग जाया करते थे। बीच में मतलब हो सकता है अभी भी कुछ खराब हो, जो अब इतना ओवर्ट नहीं है। पहले हाईवे बनते बनते रुक गए थे। बीच में हालात ये थे कि बनने लगी रेड लाइट और सिर्फ एक ही लाइट लगा पाए, मतलब अंधेर नगरी बन गया था यूपी बीच में। और अब मेरे को लगता है फिर भी काफी रिकवरी कर गया है। बट यूपी में लोग जिस तरीके से ड्राइव करते हैं, फ्रैंकली आगरा, वृंदावन, मथुरा साइड में, ओ माय गॉड ब्रो, हाईवे पे उल्टी गाड़ी चलाते हैं भाई। यूपी में लॉ इज व्हाट पीपल वांट, फुल फकिंग स्टॉप। आई एम नॉट गोना डिनाई इट भाई, आई एम अ पहाड़ी बॉय। मेरे वहाँ पे हिमाचल में लोग कम है, थोड़ा चलता मतलब हिसाब ना पक्का है। हेलमेट दोनों पहनेंगे, सीट बेल्ट सब लगाएंगे। हिमाचल में हो रहा है ये। मैं जैसे नीचे आता जाता हूँ मेरी फटती जाती है कि ये हो क्या रहा है। पंजाब पहुंच जाओ हेलमेट की जरूरत नहीं है, यूपी पहुंच जाओ रॉन्ग वे आ रहे हैं, बिहार पहुंच जाओ ट्रक रॉन्ग वे आ रहा है। गाड़ी तो आपसे पूछ रहे हो, हाँ, गलत समझ के तो नहीं निकला। वो फुल बीम तेरे मुंह पे मार रहा है कि तू क्या कर रहा है सड़क पे, तो तू साइड हो रहा है कि हो क्या रहा है भाई। ड्राइविंग इन इंडिया क्रॉस भाई, मैं अब तो यार हम वाई वी डिसिंग इफ डिसिंग भाई। साउथ चले जाओ, मैं इंडिया टूर कर रहा था भाई, कर्नाटका में मुझे पेल दिया टोल वाले ने। टोल वाले ने पेल दिया? टोल का रूल क्या है, 10 सेकंड में पास नहीं हुआ तो फ्री है। मैं 3 मिनट खड़ा था। डैम ब्रो, ये पता है इसको अप्लाई कर पाना इतना मुश्किल है क्योंकि टोल वाले पीट देते हैं और ऑरा लॉस हो जाता है। अरे मैंने हॉर्न बजा दिया पैं, उसने उसके लिए मुझे बोला दिमाग नहीं है, जहां से आया वही वापस चले जाओ। शिट ब्रो, ए रेसिस्ट होने की क्या बात है भाई, वापस ही जाएंगे पर यहाँ से निकल के जाएंगे। तेरे बाप का थोड़ी है। बहुत बुरा लगा था भाई। फिर भाई आपने वापस नहीं मारा क्या उसको, टोल वाले को? यार देख, एज अ ट्रैवलर आई हैव लर्नड वन थिंग, उंगली मत करो सामने वाले की ना, तुम्हारा टर्फ है नहीं। राइट, एग्जैक्टली। हाथ जोड़ो, गलती बोलो, निकलो। बिकॉज माई जॉब इज नॉट टू जज, माई जॉब इज नॉट टू गेट ऑफेंडेड, एंड माई जॉब इज नॉट टू रिएक्ट। इफ आई डू दीज थिंग्स राइट, आई ट्रैवल राइट। इफ आई डोंट डू एनीवन रॉन्ग, आई एम fucked, and I don't want to get fucked. So it was just like he got annoyed at you because you honked too loud? No, because my car number was HP. You sure of that? Car number was HP and I honked. Yeah, but you're sure ki the fact that your car number was HP had something to do with it? The whole line was honking. Sure. The guy ahead of me also honked. तो वो तो चला गया, फिर उसने मुझे पेल दिया। यार पता है क्यों? The reason I'm asking is I've had some of these moments in South India where I'm like, this kind of feels like कि तू मेरे को सिंगल कर रहा है, बट आई एम लाइक चल यार करता रहे सिंगल, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मैं यहाँ पे घूमने घामने आया हूँ। बट हुआ है मेरे साथ 2 बार हुआ। एक तो ये हुआ, फिर मैं हैव यू देयर वाज दिस नेशनल पार्क कॉल्ड बंडीपुर वन उद्यान। इट्स सो बेसिकली यू ड्राइव थ्रू अ नेशनल पार्क, लेफ्ट में 500 डियर्स, राइट में 200 लाइक एटलीस्ट 20-25 एलिफेंट्स। It's like you're driving through a zoo, but it's a national highway. It's Bandipur National Park. It's तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। Okay. ठीक है, it's one of the most beautiful highways. So 2 हाईवे हैं, बंडीपुर is कर्नाटका side and मुदुमलाई is तमिलनाडु side. और वो एक ही हाईवे है। Very beautiful bro. You will start driving and you look left. वीडियो भी है। हाँ, वीडियो दिखा। वीडियो लगाना, बंदीपुर वाली वीडियो लगाना भाई मेरी। हाँ ये रहा, ये खोल दो, वॉल्यूम कर देना सर। Visualize this. This is right next to a road while we are driving. That's crazy. भाई crazy bro. Crazy है भाई। बहुत सुंदर है। भाई you should go there. Right, there are no fences. You just drive through it, and it's insane. Look at that. Damn. And you can even see tigers here. Damn. If you're lucky. So this is in India, right? This is in India South. मैं तो पागल था, मैं गया यहाँ पे भाई। अब what happened here is what's the funny part, okay? When you ride cross बंडीपुर and you enter मुदुमलाई ना, बीच में आते हैं चेक पॉइंट्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत स्मगलिंग होती है, जानवर उठा लेंगे, तो चेकिंग्स आर वेरी टाइट। हम हैं यार बाहर वाले ना, तो हम एंड यू सो दिस कार आई ड्राइव इज अ रूबिकॉन, आई कॉल्ड, इसका नाम यति है, ठीक है, तो मैं यति बोलूँगा तो रेफर टू माई कार। तो यति में हम थे, हम जा रहे थे, तो हमें चेक पोस्ट पे रोका, मैं था, मेरे साथ एक और लौंडा था, हम 2 थे, ठीक है भाई। गाड़ी चेक करने लगे तो दबा के गाड़ी चेक कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही ढूंढ रहे हैं, स्मगलिंग को तो नहीं कर रहे। हमने बोला कर लो चेक यार, क्या हो गया। गाड़ी चेक करना शुरू किया, दे स्टार्ट ओपनिंग स्टफ, ठीक है। और अब हमारी गाड़ी में 2 महीने का सामान है, कैमरा गियर के साथ, तो बड़े बड़े बैग्स हैं, तो भाई पूरा कैमरा गियर खोल दिया, फिर ये खोल दिया, फिर डिक्की पूरी खोलने पे आ गए। तो मैं गया, मैंने साइड में जो सीनियर ऑफिसर था, मैंने बोला सर व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, मतलब हमें पैक करना पड़ेगा सब। बोलता है, तो वो बोलता है नो चेकिंग। तो ठीक है, तो हमने फिर भी कॉपरेट किया, हमने बोला यार ठीक है। और ना थोड़ा लैंग्वेज बैरियर था, आई विल नॉट डिनाई इट, हम हिंदी में इंग्लिश में बोल रहे थे, वो थोड़ा टूटी फूटी बोल रहा था।
सामने से बंदा आया, बोलता है यू कम हियर बॉय कम हियर। तो ना मैं, जो मेरे साथ बंदा था ना, उसको ऑलरेडी उसकी शक्ल ना थोड़ी उतरी सी थी, तो मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ। तो मैं गया उसके पास, बोलता है शो ऐसे किया, मेरे बारे में वेस्ट बैग था, वेस्ट बैग खोला, यूं पूरा वेस्ट बैग मेरा खोल दिया यूं, और ऐसे झांक रहे थे, पता नहीं क्या ढूंढ रहे अंदर। वेस्ट बैग खोला, ऐसे किया, वेंट बिटवीन माई क्रॉच, ग्रैब्ड माई बॉल्स, 1 2 ट्वाइस। ठीक है, हाँ फील करेगा सर में सर। कर रहा हूं मैं। In that moment, think a man is holding your balls and muscling it twice, and then goes down your leg, comes back, again holds your ball, checks again कि काय कुछ सिक्का वापस ना निकल के आ गया हो बाहर, and goes to other leg. And bro, in that moment, I'm looking at the other guy, and he's like, हाथ सर आपका कर रहे हैं। मेरे साथ हो चुका है भाई, मेरी वहां फट ली। मैंने बोला यार what the f just happened भाई, मतलब do we look like poachers? मेरे साइड से 3 लोकल गाड़ी के नंबर निकली, कोई स्टॉपिंग नहीं हुई, 3 गई। मैं और एक मेरे एक आगे नंबर था, वो आई थिंक महाराष्ट्र का नंबर था, उनको पेला और मुझे पेला। और लिटरली मैंने जाके ना थोड़ा पुलिस वाले से बात करी, और मैंने उसको बोला यार, मैं बोलता है हु आर यू, कहाँ से आए हो? तो मैंने फिर डैड का एंगल जब आ जाता है ना, फौजियों की इज्जत है भाई इस देश में, वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे डैड का एंगल आता है ना, सब थोड़े शांत हो जाते हैं। तो बोलो ओ सन ऑफ आर्मी ऑफिसर, ओ नाइस नो वर, गो भाई। हमने एक सामान पैक किया, हम दोनों बैठे, वो व्लॉग में भी अभी तक नहीं, दूसरी शक्ल हमने यूँ देखी, और वी आर लाइक, हाँ मतलब what was that bro? What was the need to grab my balls and squeeze it twice and then come back for it again भाई? या ब्रो लाइक अगर मैं सींग वगैरह स्मगल कर रहा हूँ तो मैं अपनी आंखों में नहीं स्मगल करूंगा यार। तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वहाँ क्या मिलने वाला है ब्रो? कहीं 3 तो नहीं, क्या कर रहा है लाइक? नहीं ब्रो, लोग बहुत अच्छे हैं यार, प्यार बहुत मिला भाई। मैं बता रहा हूँ, मैं कर्नाटका, केरला, आई ट्रैवल ऑल दीज प्लेसेस, पीपल आर लवली। इतना प्यार मिला ना कि ऐसा लगा यार, कि ऐसा लगा ही नहीं कि बाहर कहते हम, बट वो ना यार, वो बोलते हैं ना, सम एलिमेंट्स पुट दैट सार टेस्ट। But frankly, I don't even think this is racist. I think this is more sexual abuse. भाई Right, like this sounds वो like- चिल्ला भी रहा था ना साथ में हमारे ऊपर, उसके तो मैंने बात ही नहीं करी। मेरा फोकस यहाँ से नहीं हट पा रहा है भाई, तो समझ ना, वो चिल्ला रहा था, वो अलग बात थी। फिर सुन भाई, आई हैड टू गिव इन, ही इज लाइक यू हैव अल्कोहल, आई सेड यस। अब मैं क्या बोलता है, पूछ लिया। तो मैं गोवा से निकला था, मैं 2 बॉटल फैनी लेके चक्के निकल रहा था, वहां उसने 2 बॉटल फैनी देख ली, चलाने लग गया कि नो अल्कोहल अलाउड। तो मैंने खुद ही बोला, मैंने यार देखो, इफ नॉट अलाउड आई विल थ्रो इट, इट इज अ गिफ्ट, इट्स जस्ट फैनी, आई डोंट ड्रिंक। उसके अलावा कुछ था नहीं। फिर उन्होंने फिर दे लेट अस गो एंड ऑल ऑफ दैट। बट अगेन ब्रो, मतलब It's a very weird experience, bro. But part of traveling, right? Like it you is. get- I'm telling you, 3 things I told you na. You don't. I didn't even judge them after that. I didn't even. I said ठीक है भाई, साउथ में ऐसी चेकिंग होती होगी। Right. अगली बार मैं रेडी था, ठुल्ले ने रोका, बिल्कुल Can't निकाल के Can't जाते हैं। show दादा। ए, देख क्यों नहीं रहा है तुम? उसने मेरे तो 2 बार ही किया था, तू तो 1 ही बार ही। Damn, that's rough, bro. Yeah. Fuck. Nee, bro. हाँ. So coming back to the thing, I think it's not to do with places, more to do with people, यार। कुछ होते हैं यार एलिमेंट्स ना, they will leave that sour taste to you. They want to, they have certain खुंदक for some reason, they're not having a great day or something. Sure. सो आई नेवर जज यार। मैं अभी भी जो महाराष्ट्र का सीन चल रहा है, मराठी को लेके लोग पागल हो रखे हैं, मराठी बोलो। मुझे पता है यार, पॉलिटिकल एंगल है इसमें, क्योंकि दोस्त तो मेरे सारे अच्छे ही हैं मराठी, मेरी टीम में 2 हैं। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, वो तो देखो, वी शुड नॉट इवन, मैं तो उसको मीडिया अटेंशन देना नहीं चाहता। इट्स अ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। उससे वोट कैसे बनते हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है, आप कभी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इस साइड पे लोगों से बात करो राजनीति के बारे में ना, इनको जेन्युइनली समझ आती है लोकल आदमी को, क्योंकि वो चाय पीते हुए बात यही करते हैं। मेरे को फरीदाबाद पिछले 1 साल रहने के बाद लोगों से मिला के समझ में आया कितनी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं है क्यों चलती हैं। दिस इज पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, डोंट टेक इट टू सीरियसली, बट आई एम श्योर देयर आर हिडन जेम्स दैट यू वुड लव टू ruin for the people who know about it. Tell me some places that people don't know of that they can visit. Bhai, I'll tell you one of my most favorite places, and we'll show you also. Cool. It's called Kremchampe. ये कहाँ है? गूगल करो ब्रो, don't open my page. उसकी spelling is not as strong. KREM, just write KREM. Bro, I'll show you. KREMCHAMPE. Where is this? बस खोल दे भाई, मेघालय bro. Look at this. You can do cave diving in India. I think this is the 3rd or 6th longest cave in Asia. इसका fact check कर लेना भाई. I'm not sure, but yeah, you can do cave diving in India भाई. Spelunking.
That's what it's called, no? I am not ऐसे sure, कुछ कहते हैं but उसे। yeah, this is like 21 kilometers explored length, भाई. And I was standing right there. वो लेफ्ट पे फोटो देख रहा है? हाँ. वैसे मेरी पास भी एक फोटो है. And this is like it. साला मैं ही तो नहीं हूँ. नहीं, भाई शुक्र मूत रहा है वो तो शायद। नहीं वो वहाँ पे उसने डंडा अच्छा, पकड़ा डंडा है. पकड़ा So it's हुआ like a thing. हाँ. Bro, it is like a gate to hell. The feel of it, and it's a long hike to reach here. So it's a full day work, भाई. Full day Wait, का 2 where are days. you climbing this from? Like where do you start? I think it is. I think the trail starts from. I'm forgetting a name place. By sorry. Check कर एक बार. There's a village. I spent some time in Meghalaya also. Meghalaya is भाई beautiful. this is that side तुम्हारा खासी side का है खासी का I think ना. एक बार यार हाँ एक बार मैप पे खोल दे भाई. हाँ. Zoom out कर. बस हाँ थोड़ा और zoom out कर. हाँ थोड़ा और zoom out कर. थोड़ा zoom out कर ले भाई. हाँ उमलोंग के पास है. Perfect. और zoom out कर. South में है भाई. साउथ ऑफ वो ना ऊपर तक वो दिख जाएगा जो भाई वो रहा लेफ्ट में जहाँ पे वो है तुम्हारा वो क्लीन रिवर नहीं है वो जोवाई में है डाउकी जोवाई ये रही क्रेम चैम्पे रहा थोड़ा फीफी फॉल्स हो रहा और एक शिलोंग हो रहा सो इट्स ऑन द सदर्न साइड ठीक है टुवर्ड्स असम तो मैं शिलोंग से आई हैव डन डाउकी वेयर इज डाउकी डाउकी वो रहा ना नीचे जूम इन कर थोड़ा ये जहाँ जोवाई लिखा है ना वही डाउकी हां ठीक है डाउकी रहा सही समझ गया ओके आई गेट अ सेंस ऑफ इट या ब्रो इनसेन भाई यहाँ के पहाड़ भी नेक्स्ट लेवल है भाई पहाड़ ब्रो यहाँ के शहर भी नेक्स्ट लेवल मेरे को तो शिलोंग इतना सुंदर लगा था मैं बता नहीं सकता डिड यू डू दैट डबल डेकर रूट ब्रिज ट्रैक माउलेलोंग में हाँ शायद जो वो रूट ब्रिज ट्रैक था नहीं भाई लोग रहते हैं उसमें वहां मैं गया था भाई 7 घंटे में चला हूँ मैं 17 घंटे चल सकता हूँ मैं इतना बड़ा पहाड़ी हूँ पर जो चिप थी एक बार लिख डबल रूट ब्रिज मेघालय ओवरऑल यहाँ पे जैसे चेरापूंजी वगैरह आता है वेटेस्ट प्लेसेस ऑन द प्लैनेट सारा टाइम बारिश हो रही होती है इन जगहों पे मुझे अभी मानसून में जाना था वो तो मेरे घर वाले ना पहाड़ी हैं थोड़ा तो ये देख दे गेट रियली हैव यू सीन दिस हिमांशु इट इज सम प्रैक्टिस दैट दीस लोकल पीपल नो जिससे ये ट्री की रूट्स को ना ब्रिज बना देते हैं yes इट्स दिस वियर्ड थिंग and it takes 100 years for it to even solidify to become a proper walkable bridge right so they keep redirecting the routes towards one side रस्सी बांध के फिर वो रस्सी क्लाइंब करते रहते हैं and over 100 years then they start solidifying and to become a proper bridge isn't that fucking crazy और ये डबल है भाई हाँ you can walk on this bro you walk on this भाई हाँ रील भेज दे उसको हाँ ये वाला ये नहीं हाँ ये चला देना भाई हाँ ये तो चला दे पूरा मैं क्रेजी भाई दिस इज नुकालिका फॉल्स ये रहा डबल रूट ब्रिज ये रहा क्रमचाम्पे क्रमचाम्पे की अलग स्टोरी भाई जो ग्रुप मुझे लेकर गया था उसको मैं उनका रेस्क्यू साला मैंने ही किया अंदर फंस नहीं गए भाई कहानियां गाड़ी जाती है गाड़ी घुसाती है ऑफ रोड ट्रेल में नीचे नदी थी नदी में आधी में थार खड़ी है उसको निकालने में फट गई उसके बाद वो बंदा जो हमें लेके जा रहा था उसकी फिटनेस नहीं थी उसको क्रैम्प्स आ गए उसके बाद उसको हाइड्रेशन दी उसके बाद जब हम पहुंचे तो अंधेरा हो गया अंधेरे के बाद रात को बोल रहा है अब उसी नदी से वापस जाएंगे मैंने तू पागल है क्या नदी में रात को इतने पानी को हमने क्रॉस किया था छाती से बोल रहा है रात को क्रॉस करेंगे ऐसे भाई देख लोग यहाँ रहते हैं ब्रिज होगा मानने को तैयार नहीं बाद में पता चला ब्रिज राइट में था हमें नीचे से लेकर आया पानी से हाँ गाड़ी के साथ गाड़ी भी घुसवाई मेरी भाई पीपल आर रियली अनअवेयर भाई मैं इंडिया में बता रहा हूँ ना सीन खुद अगर इन्वेंचर का ए नहीं आता ना तो पहले सीख लो ये कुछ नहीं ना रस्सा बांधना तो आना चाहिए अगर तेरी टांग टूटी ना तो तुझे पिट्ठू बना के कैसे लाना है इतना ही सीख लो बहुत है तो तुम एटलीस्ट बंदे की जान ही बचा लोगे वही जरूरी है बढ़िया और इंडिया में ट्रैवल करने और बाहर अब्रॉड ट्रैवल करने में कोई डिफरेंसेस बहुत है यार एक बार मुझे लगता है इंडिया ट्रैवल करना ज़्यादा बेटर है बिकॉज इफ़ यू आर लाइक अ को ट्रैवल लाइक मी इट्स वेरी रॉ बाहर इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड अगर तू एल्प्स भी चढ़ रहा है तुझे पता है रास्ता यही है तो यहाँ इसके अलावा कहीं जा नहीं सकता राइट है ना सो मुझे ना वो बहुत एज माई मसल मेमोरी आई कॉन्ट रियली enjoy a lot of like structured stuff. Like US also, I did this whole Utah. Utah में I went across the national parks. सब कुछ structured है यार, यहीं जाना है, यहीं करना है, यहीं खाना है. और हम पहाड़ी बंदे यार, अपने को एक्सप्लोर करना है क्रेजी टाइप ना, तो फिर वो फील मिस हो जाती है. बट यूएस में ऑफ रोडिंग बेटर इंडिया से. वहाँ गाड़ी है ना अगर, तो फिर कहीं भी जाओ, वो बेस्ट लगता है मुझे. हिमाचल ने मेरे को इतना बिगाड़ दिया था. हिमाचल में क्या ये पहाड़ आज इसको चढ़ेंगे, कोई नहीं रोक रहा भाई. नोबडी स्टॉपिंग यू. मेरे को याद है पहले, बिफोर आई वेंट, द फर्स्ट टाइम वेंट टू द रॉकीज, हमने क्लाइंब करना शुरू करा. मैं और मेरे को एक बंदा मिल गया था एक हॉस्टल में. वी स्टार्ट क्लाइंबिंग एंड वाज लाइक अ 4.5 hour climb into the Rockies, right? Sweet. पूरे रास्ते 5-star walking, tarmac,
कहीं कहीं वो सीढ़ियां सब बना हुआ है भाई, बट द प्लेस इज सो रिमोट बाय द टाइम वी गॉट टू इट आई वाज लाइक कहाँ आ गए हैं, और यहाँ तक इन्होंने सीढ़ियां बना रखी हैं. सो इट्स अ लिटिल वियर्ड बिकॉज रास्ता बड़ा क्लियर है बट उतना ही रिमोट है. Exactly. यहाँ तो आप भाई जहाँ मन जा रहा है वहां जा रहे हो, बच के आए नहीं है, सिर्फ गाँव वालों को पता है कौन गया है छोड़ के, कौन आ रहा है. सही बात है भाई. इंडिया में जीपीएस इलीगल है यार. तू सोच the adventure we do, we can't even carry a spot is like जो गारमिन का spot आता है, GPS होता है, I can just put an SOS anywhere. इंडिया में लीगल है. क्यों? टेररिज्म की वजह से. ओके, अच्छा, इंटरेस्टिंग. मेरा दोस्त था, उसका भाई लेकर आया था हिमाचल से, उसको उठाया, अमेरिकन सिटीजन था, एम्बेसी इन्वॉल्व हुई, तब जाके छोड़ा उसे. ओह रियली? हाँ, एयरपोर्ट पे इंडिया में ले कैसा आया पता नहीं, ले जाते टाइम पकड़ लिया, ठीक है, और फिर उसका, और इंडियन ही है बट अमेरिकन सिटीजन बन गया. उसका स्पॉट पकड़ा गया, उसको उठा के लेके गए, फुल इंटेरोगेशन हुई, इवन रॉ गॉट इन्वॉल्व कि स्पॉट है क्यों तेरे पास हिमाचल में, बता पहले ये. फिर उसका वो क्रॉस चेक हुआ, एम्बेसीज गॉट इन्वॉल्व, फिर उसको छोड़ा 5-6 दिन बाद. एंड हाउ आर दीज मोर क्लीशे स्पॉट्स जो लोग अब जा रहे हैं, फॉर इंस्टेंस नॉर्दर्न लाइट्स एटसेट्रा? भाई, आई थिंक वन ऑफ माई बिगेस्ट, I wear it भाई, मतलब this is what those defining moments of your life which you love to wear. 2018 भाई, पैसे वैसे होते नहीं थे, जो मैंने कहानी सुनाई पहले. I got an opportunity to travel to Iceland and first time I saw Northern Lights bro, and उसके बाद तो मैं addicted हूँ यार उनसे. I've been so lucky, just not Northern Lights भाई, I've even seen Southern Lights. Southern Lights कहाँ है? I saw it in New Zealand. Okay, you see similar phenomena? No, they're different. So little bluish green on the north, little blue purplish blue in the south. मतलब जो मेरे को दिखा वो थोड़ा अलग था, बट इट्स नॉट क्लीशे भाई, इट्स नॉट क्लीशे. आज के टाइम में तो इतना रेयर हो गया है. मैं तो बताता हूँ, वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ नॉर्दर्न लाइट्स वॉज इन फिनलैंड. आई वॉज इन फिनलैंड लास्ट विंटर्स एंड मैं था ऊपर सरिसलका. इट्स नॉर्दर्न, इट्स इन द आर्कटिक सर्कल. तो सरिसलका में था एंड आई मेट अ ग्रुप ऑफ गाइज हु टोल्ड मी वो नॉर्दर्न लाइट दिखाएंगे. मैं भी उनके चला गया. ब्रो लिटरली हंट करते हैं नॉर्दर्न लाइट्स को ना, एक बहुत सही कॉन्सेप्ट है. यू हैव टू हंट नॉर्दर्न लाइट्स, यू कांट जस्ट फाइंड देम. अच्छा, इट्स नॉट लाइक अ होटल यू चेक इन एंड वो बाहर दिखी जाएगा. हो सकता है, हाँ. हो सकता है. जैसे मैं था, जिसमें था सरिसलका रिजॉर्ट में, उसमें उन्होंने इग्लूस टाइप कैबिन बनाया है ग्लास वाले, जिसमें तुम लेटे रहो और अगर तुम लकी हो तो तुम्हारे सामने नाच रहे होंगे, वो तुम्हें बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है. बट इफ यू रियली वांट टू एंजॉय इट, यू हैव टू हंट देम. Okay. So the hunting begins with an app which is called a sky map. Interesting. So basically क्या होता है, what is northern lights? There's just ionic particles having activity thanks to the sun rays. Radiation है, ठीक है. So वो radiation जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे northern lights होगी. ये आइडिया है, साइंस बेसिक है. So this map tells you the radiation activity across the region. So you have to check radiation and you have to check the weather. If the weather is open and there's high radiation, 99% northern lights. अब वो कितना बड़ा फटेगा, what kind of texture it will have, that is all on intensity of the radiation. So these guys hunt it. So you will probably like, if you, and you can check into these group trips where they hunt this. So if you want to like have a solo thing with a one camera guy and you want to create content, वो अलग बात है. So मैं वहाँ था सरिसलका में bro, I met this group, 6 people were doing this, I just joined them भाई, and they took me to northern Sarisalka, drove for 3 hours भाई, out of the city. इन आइस, तू सोच बाहर टेम्परेचर -36, स्लिट है बिल्कुल. गाड़ी उतरी तो उतरी गई. उस पर चला रहा है, बोल रहा है व्हील सी, पता नहीं कहाँ पहुँच के खड़े हुए. अब क्या होता है ना, यूजली यू विल थिंक कि जैसे ये दिख रहा है नॉर्दर्न लाइट ऐसे ही दिखेगा. यूजली ऐसा नहीं दिखेगा. यूजली तू उतरेगा, गाड़ी की लाइट से बाहर जाएगा, फिर अंधेरे में जब तू फोकस करेगा तो योर pupils they will dilate, then the light will start absorbing, so then it will. So bro, for every time that was my muscle memory कि यार अभी तो हल्का से दिखता है, वो ग्रीन दिखेगा, वो बोलेगा देखिए नॉर्दर्न लाइट है, मैं बोलूँगा हाँ यार ये तो नॉर्दर्न लाइट है, मुझे भी पता है डायलेटेड, फिर कैमरे से खींचूंगा, फिर एक्सपोजर फोटोशॉप में जाके सैचुरेशन का मापन करूंगा, तब जाके बोलूँगा ओ नॉर्दर्न लाइट्स. राइट. ब्रो मैं गाड़ी से उतरा, मैंने ऊपर देखा, फट गई. Bro, I'm a goosebump guy, and as I'm telling you, I'm sure ये आएगा. Bro, right above my head there was this big crevasse opening in the sky, and something like that was falling, blue and green, in towards me, and I could see it move like that, and it was moving in full speed, and it happened with me. See, as I'm saying, see आते जा रहे देख, because bro, within like 2 to 3 minutes, I have never seen anything like that, bro. It was out of this world. The sky was dancing, and this was the 4th time I saw northern lights, and I had never seen northern lights like that before. Incredible. And that is where I tell you the bigger difference is. लोगों ने commercialize करके ना basic shit को इतना glorify कर दिया है that जो real चीज़ है वो लोग experience भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. रात के 2:30 बजे -36 डिग्री में तू साला ऊपर देख के बोल रहा है राइट. Is this
is this what it actually was supposed to look like? Right. And that's the difference, bhai. And I'm telling you, like, it's not what it especially in India, जो इसका tourism side कर दिया है, जो लोग देखने वाले हैं उन्होंने देखा है भाई, और वो रोए हैं. मैं रोया भाई उस दिन 1-1.5 घंटा, तो मैं पागलों की तरह रोया भाई. एक तो मैं भोले का भक्त हूँ, तो मेरे को तो हर इंस्टेंस में भोले दिखते हैं, तो वहाँ में जो मैं रोया हूँ ना, वो लाइक ब्लडी हेल मैन यार, कुछ है फिनोमेना. And it's insane. And then I saw Southern Lights the similar way, but little farther because I was not in the southern circle. तो वो दूर था, वो ऐसे लग रहा था कि कुछ 200 किलोमीटर दूर है, बट फटा हुआ था बिल्कुल. तो that was also very nice. दिखाता हूँ तुझे, दिखाओ यार भाई मेरे. ओ चला भाई, हाँ यही तो है फिनलैंड वाला. ये उस रात का नहीं है, ये उससे एक रात पहले का है, बट इसमें जो सेकंड शॉट है ना वो उस रात का है. दिखा प्ले कर. I'm seeing the Southern Lights for the first time. ये Southern Lights है, या. अब देखना. Do you see Southern Lights are purplish? Do you see? Violet purplish. That's Southern Light, bhai. It's very different. Damn. And where are you in New Zealand for this? Southern New Zealand, Queenstown के पास. वहाँ पे एक बहुत सही रिजॉर्ट टाइप था. I was working with the tourism board. So उन्होंने एक रिजॉर्ट में अपने को कमरा दिया था. उनका जो डेक साइड था वहाँ से पूरा अंधेरा ही था. और पता नहीं, luckily bro we saw it in summers. Achha, otherwise, and summers there or winters here? So like you're talking January, December types, right? No, I'm talking September types. September types. Okay. तो उनका आउटगोइंग विंटर्स था, हमारा इनकमिंग विंटर्स था, उनका आउटगोइंग विंटर्स था, तो उनका समर आने लग जाता है. सो इट वाज क्रेजी ब्रो. हाँ ये अपना फिनलैंड का है ना, खोल इसको चालू कर एक बार. Oh my God, कैसी होती है ये जगह? इट्स इनसेन भाई. का जवाब अभी तक तो मुझे भी नहीं पता. मुझे इसको शूट करना सीखना इतना टेक्निकल है भाई. फोटो लेना आसान है, इसके वीडियो शूट करने के लिए भाई लगता है मेहनत, पर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर. सो आई वुड स्टिल से ब्रो, आई एम अ नॉर्दर्न लाइट फ्रीक बॉय. आई विल गो हंट एवरी ईयर, आई डू दैट, बट नाउ आई हैव लर्न द वैल्यू ऑफ इट. सो आई वुड जस्ट डू अ नॉर्दर्न लाइट हंटिंग ट्रिप 10 days. आई जस्ट हंट, जस्ट टेक अ कैरावान, बिलीव इन finding it and just look at the map and drive every day. Hopefully कि दिखेगा. That's crazy. Hopefully. What is up next? Like where are you going now after your back's recovered and stuff? भाई first thing first, plane से कूदना है दोबारा. हाँ मेरा 200 खत्म करने हैं. हाँ मेरा रिग आ रहा है यार. I've been lucky enough. तू चलते से क्वेश्चन पूछता हूँ. How much do you think a paragliding rig, a skydiving rig costs? जो ये पूरा रिग है, पैराशूट, पूरा जो ये बैग है विद 2 पैराशूट, कितना कीमत होगा इसका? 50-60 हज़ार रुपये. 50-60 हज़ार रुपये, राइट? $12,000 जितनी तेरी ब्रेजा आती है. 10 लाख रुपए is your base price for a rig for one person. That's the kind of investment. So no, you don't invest in it till you're sure you want to invest in it. Right. So I after 3 years of doing it have invested in a rig. और वो rig भी बनती है एक Porsche की तरह. So I ordered in Jan. The construction will start in October. फिर अक्टूबर में जाएगी बनने के लिए और दिसंबर तक आएगी मेरे पास. और this rig, which is basically, I'm assuming, buckles and belts. Yeah. Just a bag with parachutes and everything, like the container. And is that customized to you? Yeah. It's like your Gucci. Interesting. Made for you. It's like that. Yeah. So you want to jump off again? Yeah. The first thing I want to do is just fly to Thailand. वहाँ पे Thailand में एक drop zone है. It's a very close friend of mine. Yeah, we become like families because you jump so much with them. Right. So I was gonna go to them, do like 10 days, just jump every day, like because I have not done it for 8-9 months. And also the thing is, I'm not current. अगर तुम स्काई डाइविंग में 6 महीने तक जंप ना करो, देन यू हैव टू गो थ्रू अ रिकरेंसी प्रोग्राम टू गेट करंट. करंट का मतलब है कि तुम्हें कोई इंस्ट्रक्टर बोलेगा हाँ तो कूद सकता है. Got it. Because it's again science, right? So you have to be aware. They need to be confident कि तू को याद, तेरी मसल मेमोरी चालू है अभी भी. Right. But yeah. And then what do you do from there? बस उसके बाद भाई now the idea is यार कि from a very traveling point, for me personally now I want to experience things which have always been my dream. So I want to really head to Kyrgyzstan, Kazakhstan on a bike. Right, I want to do those things. That's an interesting spot. Why Kyrgyzstan and Kazakhstan? Bro, I want to be offbeat यार. मेरे से नहीं होता है cities. मैं बहुत out. मुझे ना I like to feel culture, bro. Have you heard of Zanskar Valley? Sure. Bro, I've seen Zanskar Valley when the highway was also not made. Zanskar, Ladakh side, bro. I'm talking about 2018-19 when I first time went to Zanskar. सड़क तक नहीं थी यार. ज़ंस्कार में तो वो जमीवी रिवर पे ट्रैक करते थे ना. नहीं, वो अपने तुम्हारा चादर ट्रैक है ना. दैट ज़ंस्कार रिवर. आई एम टॉकिंग अबाउट ज़ंस्कार रीजन. ओके. इट्स सेम बेल्ट ओनली. लद्दाख, ज़ंस्कार, कारगिल. राइट. ये 3 बेल्ट है. ठीक. तो ज़ंस्कार बीच का है. तो ब्रो when I went there for the first time, bro, I went there this place called Padum. It's the center of Zanskar. I went there in winters for वहाँ पे आइस क्लाइंबिंग होती थी भाई. वहाँ जाने के लिए पहले लद्दाख ले से चॉपर लेना पड़ता था जब सड़कें नहीं थी सिर्फ विंटर्स में जाने के लिए. सो दैट टाइम इंडिया वॉज दैट रॉ. इंडिया में कुछ रॉ इतना बचा नहीं है.
So I still crave that. And last couple of years I've been so much content focused now कि now after achieving a lot with this creator journey अब लगता है साला पुराना वाला घास चाहिए. पिट्ठू, घोड़ा, तू, चारा, चलो देखेंगे क्या होता है. 10 दिन ना मरने दो. कंटेंट बना fuck it, live it. So वो live it अब मेरा इस साल से फोकस live it पे है. और किर्गिस्तान कजाकिस्तान में क्या है? स्टेप्स है ना, प्लेन्स है ना? प्लेन नहीं है, पहाड़ है भाई. अच्छा पहाड़ है भाई. कजाकिस्तान लिखने के बाद प्लीज देख, साथ में चलना. कजाकिस्तान जाने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं है ना? डायरेक्ट फ्लाइट है, सीधा अलमाटी जाता है स्ट्रेट. अलमाटी? अच्छा ये कजाकिस्तान ही जाता है? अलमाटी कजाकिस्तान तो है. उज़्बेकिस्तान है शायद अलमाटी. नहीं कजाकिस्तान, अलमाटी कजाकिस्तान. अलमाटी, एक बार अलमाटी लिख ब्रो, कजाकिस्तान ही तो है. कहना भी हाँ ये रहा ना कजाकिस्तान. अलमाटी कैपिटल नॉर्दर्न. हाँ ब्रो दे आर लाइक ये राइट वाला खोलो, अलमाटी टूरिज्म खोलो ब्रो. यू वोंट इवन फील it has some of the most scenic places in the world. Look at that city, look at that pahad, Ladakh लगेगा तुझे. Beautiful, it's northern. Yeah, bro. See the straight flight and you can really explore, bro. And they have different tours. You can take a horse, you can take a bike, you can take a car, you can take a 4x4. थोड़ा मैंने सुना है कि थोड़ा रेसिज्म यहाँ पे भी हो जाता है हिंदू मुस्लिम के चक्कर में, थोड़ा सा. Some of people who went, they spoke about it. In fact अभी ये क्या था ना, जो who came on your vlog, परमवीर. हाँ वो यही है ना शायद. हाँ तो उसने तो बात करी थी कि कुछ उसके साथ हुआ, थोड़ा सा रेसिस्ट सा हुआ. I his video only. I saw some of that. I think so. Yes. तो वही है ब्रो. So I want to do these countries now यार. मेरे 53 countries तो हो चुके हैं, but now I proudly I can only say that 5 countries out of those 53 have been my taste countries. ठीक है. बाकी भी कंटेंट टेस्ट. हाँ यार नॉट रियली कंटेंट, बट अब जो मेरा नया जॉनर है इन ट्रैवल ना, विच इज़ मी वांटेड टू डू मोर एक्सपीरियंशियल रॉ ट्रैवल्स, वो वैसा वो यार तू यूरोप जाएगा तो एवरीथिंग इज ABCD, साउथ ईस्ट एशिया इज ABCD, तो बचा क्या. इंडिया में सब कुछ ABCD हो चुका है. ठीक है. लद्दाख चले जाए यार, मतलब आई शुडंट बी सेइंग दिस, लद्दाख इज़ अ वेरी सेंसिटिव इकोलॉजिकल एरिया. ठीक है. बट लद्दाख इज़ एन एक्सपीरियंस. बट वी एज इंडियंस ओनली हैव स्क्रूड आवर हैप्पीनेस बाय डूइंग रॉन्ग थिंग्स. अभी मैंने देखा कोई सुपर बाइक लेके पैंगोंग में घुसा के, सुपर बाइक को पैंगोंग में पानी में डाल के व्हीलियां वो एक्सलेटर दे रहा है. उन्होंने कर दिया पंगा. अब अगली बार तू इफ यू पर्सन लाइक यू हैज़ अ 4x4 एंड वांट्स टू पार्क इट राइट नेक्स्ट टू द पैंगोंग एंड सिट एंड बी लाइक वाओ मैन, वो भी नहीं कर पाएगा यार तू. दूसरों का एक्सपीरियंस भी मार दिया अपने साथ साथ. क्यों? क्योंकि अपनी रील के लिए फुकराबंदी करनी थी. तो मुझे ना अब ये लगता है कि यार दैट्स व्हाई भाई, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव slowed down a lot of different type of content because of this reason only. पहले मैं बहुत extreme off-road करता था, where I used to take my truck to borders of places in India and I used to camp there. फिर मैंने बोला नहीं यार, अगर करना भी है ना तो यार अपने लिए कर आकाश, जी ले और छोड़ना यार, वीडियो की ज़रूरत ही नहीं है. मतलब क्योंकि तू करेगा रिस्पॉन्सिबली, तू कचरा उठा के लेके जाएगा, तू बोलेगा यार हाँ मैं वीडियो में भी दिखा देता हूँ कि कचरा उठाया मैंने, तू पॉइंट भी चल तूने प्रूव कर दिया. बट एट द एंड ऑफ द डे तुझे देख के ना कोई फुकरा इंस्पायर होगा और वो जो मारेगा ना वो सबका सीन खराब करेगा. सबका सीन खराब कर देगा यार. 4 लोगों छोड़ो भाई, लद्दाख में इतनी जगह लोगों को नहीं पता, मैं बताता भी नहीं उनके बारे में. पूगा हॉट स्प्रिंग, हैव यू हेard of पूगा हॉट स्प्रिंग? नो ब्रो, एक बार पूगा खोलना मेरी वीडियो में. ची दिस लास्ट फॉर यू ब्रो. आई पोस्टेड अबाउट दिस वीडियो, इंस्टाग्राम खोलो ना. आई पोस्टेड अबाउट दिस वीडियो 2 years आफ्टर आई एक्चुअली लिव्ड दिस मोमेंट ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज अब फाइनली हो गया कमर्शियल, रोकने का फ़ायदा भी नहीं हुआ कुछ. ब्रो ऊपर चले जाए एकदम प्लीज़ ब्रो, दिस इज एकदम ऊपर चल जाओ. हाँ अब थोड़ा स्लो चलना. हाँ चलते रहे. हाँ ये नीचे ब्रो, दिस ओपन दिस वीडियो. सोचो 16,000 फीट पे एक नेचुरल स्पा जहाँ सिर्फ लद्दाख के लोकल्स एक्सप्लोरर्स ही पहुंच पाते हैं. ये सफर शुरू हुआ था 2000 किलोमीटर के इंडिया के सबसे एक्सट्रीम ऑफ रोड ट्रेल पे, द अल्टीमेट लद्दाख ट्रेल. सोकर क्रॉस करते ही हवा में एक अजीब सी सुगंध आई. अस्थाना ने तुरंत बोला भाई यहाँ कहीं हॉट स्प्रिंग होगा. पूरे एरिया में हरी पीली पत्थर की परतें, जैसे जमीन कुछ कह रही हो. साइंटिस्ट अस्थाना ने तुरंत पत्थर उठा के छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए और रोड के साइड से भाप निकल रही थी, जैसे जमीन सांस ले रही हो. आगे कुछ टेंट्स दिखे तो यति को 4x4 पे डाला और हम घुस गए स्लश भरे ट्रेल में. एक फाउंटेन जैसी जगह दिखी जहाँ सल्फर का पानी वॉल्केनो की तरह इरप्ट हो रहा था. फिर दूर एक तालाब दिखा जिसमें पहले ऐसा लगा कि कोई पत्थर है, लेकिन पास जाके देखा तो किसी इंसान का सिर था. और फिर उस मोमेंट में मेरा दिल बोला करो या मरो. तो उतारे कपड़े और ये हॉट स्प्रिंग सिर्फ मजे के लिए नहीं, ये लद्दाखी लोगों के लिए एक हीलिंग ट्रेडिशन है.
हॉट स्प्रिंग के गर्म पानी में अपने शरीर को आराम देते हैं और आने वाली कड़कती हुई ठंड के मौसम की तैयारी करते हैं। तैरने के बाद मैं एक टेंट में गया जहां एक लोकल हीलर पहाड़ी जड़ी बूटी से दवाई बना रहे थे। पूरा गांव हर साल ये रिट्रीट करता है। इस एक्सपीरियंस ने हमें इस ट्रेल का एक परफेक्ट ट्रेलर दिया, पर अभी हम रुक नहीं सकते थे। सो वी पैक्ड अप, गॉट बैक इनटू द कार और अपनी जर्नी शुरू करी टूवर्ड्स सोमोरिरी। और वहाँ उस रात हमने मौत को बहुत करीब से देखा। इस सीरीज को फॉलो करो, शेयर करो और अगले संडे का इंतजार करो, क्योंकि अल्टीमेट लद्दाख ट्रेल तो बस अभी शुरू हुआ है। जय हिंद। Damn, bro, itna to get all these shots, you probably end up wasting a lot of your time, no? No? I'm very fixed. Achha. I know what I need. Achha, you I know get what it you done. need. I don't overshoot Huh. because I told you I'm a camera guy, so I know what I need to shoot and I fix it to that. I don't get obsessed. I don't say lighting खराब है, रुकते हैं नहीं. I was like, get the shot, get out. But bro, this ultimate Ladakh trail is 2023 when I got the Yeti, I got the Rubicon. I did 4,000 kilometers across Ladakh in one fuel tank. ठीक है, I refueled back only in Leh. मैं 120 लीटर एक्स्ट्रा फ्यूल लेके चला था इसमें. We did the whole Ladakh का circuit without even entering Leh. ठीक है, only outskirts, only extreme stuff. And this was the last time when Ladakh was actually Ladakh. Because for me at least, because अब तू देख मैं यहाँ हॉट स्प्रिंग पे था, कोई दिखा और लोकल्स थे, लोकल को इज्जत दी, उन्होंने चाय पिलाई, उनके साथ नहाए, उनसे गप्पे मारे, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करे, लिव दैट मोमेंट, डिडंट केयर अबाउट वेयर वी गोना गो। वीडियो भी इसलिए बन गई क्योंकि मज़े करते करते अस्थाना ने बोला ब्रो भाई इनसे पूछ लें एक बार कि हम वीडियो हम शूट कर लें। बोलते हाँ करो करो, तो हम कैमरा लेकर आए फिर भाग के, वरना मैं नंगा होकर भागा था, बस मैं भागा ही था नंगा होकर खुशी के मारे। दिस इज़ वेयर इट कम्स भाई। अब नाउ लुक एट दिस पूगा हॉट स्प्रिंग भाई। अब मैंने 2 साल बाद वीडियो डाली, मैं 2 साल पहले क्यों नहीं डाली इसको, मुझे लगा यार कि मैं गया, मैंने इज्जत दी, मैंने गाड़ी दूर खड़ी करी, मैं नंगा होकर गया, आई डेंट टेक माई शूज़ इन साइड, आई मेड श्योर हाउ दे वर डूइंग एंड आई डू इट। आज के बंदा वीडियो के लिए जाएगा भाई, बाइक लेके घुसा देगा हॉट स्प्रिंग में, उसको पता भी नहीं कितना गर्म है, ठंडा पानी है, जल जाऊँ नहीं जल जाऊँ, कुछ गलत करेगा एंड दैट विल शट द होल सीन एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग नाउ। I hear you. गाड़ियाँ लेके तो निकला, लास्ट में भाग रहा था वो ग्रीन पैचेस में, वहाँ लोग बाइकें चला रहे हैं उस स्लश में। हैव यू हर्ड ऑफ बारालाचा पास? I have heard of the name, yes. Yeah, this year I've seen 20 to 25 videos of car getting stuck in the pass. Who the puts the truck inside a slush pass? मतलब तुम्हें आइडिया ही नहीं टेरेन क्या है, तुमने गाड़ी दे दी उसमें, अब तुम्हें लग रहा है 4x4 निकल जाएगी, खड़ी हो गई, वहाँ के स्लश था, धस गई, अब जेसीबी निकाल रही है। अब क्या सीन है, अब उन्होंने बारालाचा पास में बोल रहे हैं कि पूरे में वो बना देंगे वो जाली। तुम साला Right, I know what you mean. मतलब the common advice I'd give people is कोई चीज़ 5 साल, मतलब जब वो हॉट होनी शुरू होती है उसके बाद 2 साल हैं। मतलब I'll give you a very weird example, ठीक है? I don't know if this will make it on camera. The other day my father called me, he's like, मैं सोच रहा हूँ छुट्टी वुट्टी पे चले जाऊँ। मैं बोला कहाँ जा रहे हो सोच रहे हो? कह रहे सोच रहा हूँ कसौल चला जाऊँ। मैंने कहा अब कसौल की मृत्यु हो चुकी है। मतलब अब वो इतना फेमस हो चुका है क्योंकि अब वो पापा के टूरिज्म रिकमेंडेशन में आ रहा है। You know what I mean? Like if it is on his map, like it's past that point. So एक बार वो जगह पॉपुलर होती है, फिर उसको खत्म कर देते हैं, फिर वहाँ पे कचरा भरा होता है। Yeah, I get it. But for the podcast, I would also like to say, बर्बाद करने वाली हम जैसे ही हैं। Sure. And I've learned things the hard way. And that is where मेरा रिक्वेस्ट हमेशा नई जनरेशन ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स है, अब जैसों से रहता है कि यार थोड़ा सा माइंडफुल क्रिएशन करते हैं। अब जानता हूँ यार रेस है और ठीक है मैं किले के ऊपर बैठा हूँ तो ज्ञान चुक सकता हूँ, ठीक है, बट मैंने भी उस टाइम पे दिए जब मैं चाहता तो ना देता। I'm not saying that those were the best of my actions or something, but I more and more as the day progresses and as I see, I just feel कि यार महाराष्ट्र को देख ले भाई, मॉनसून हेवन था, पिछले साल इतने लोग गलतियों की वजह से मरे हैं ना वहाँ पे रेंज में बिकॉज ऑफ द फ्लैश फ्लड्स दैट हैपेंड इन महाराष्ट्र। एंड दिस ईयर ब्रो यू सी ओनली वीडियोज ऑफ क्यूज हेडिंग टूवर्ड्स वाटरफॉल। बारिश हो रही है, पानी बह रहा है, मरने वाले हालत है, मगर 200 लोग जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। क्यों? वीडियो देखा था, वीडियो बनाने देखा तो ए था, बी वाले तो बनाने जा रहे हैं, तो उनका ऑब्जेक्टिव वहाँ पे सर्वाइव करना नहीं है, शॉट लेकर आना है। नाउ अगेन नॉट बीइंग हिपोक्रेट, क्यों बनना हिपोक्रेट ना, तुमने ही किया था, मैंने ही शुरू किया होगा प्रॉब्ली, लेट्स से दैट मुझ जैसे उन्हें शुरू किया होगा तभी हालत ऐसी है। तो अब क्या कर सकते हैं हमें सीन को इम्प्रूव करने के लिए? हाउ टू वी मेक ट्रैवल माइंडफुल अगैन, मीनिंगफुल अगैन? हाउ डज दैट इन्फ्लुएंस कम इन इज माई बिगेस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट टुडे फॉर माई सेल्फ, कि साला मैं क्या करूँ? जो बोलते हैं जो तूने ही हगा था उसको तो कैसे संभालेगा, कैसे साफ करेगा, बिकम्स द न्यू चैलेंज फॉर मी एज अ क्रिएटर।
Interesting. That's where I think. इंटरेस्टिंग एंड वेरी मच्योर एंड हाँ मतलब हम लोग जनरली इतना ध्यान नहीं देते आई थिंक यू बिकॉज यू लिव इन दिस स्पेस आई थिंक इट्स मच मोर सॉर्ट ऑफ यू हैव मच मोर अवेयरनेस ऑफ व्हाट कैन हैपन बट इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट जितने सुंदर हमारे पहाड़ हैं या जितनी सुंदर हमारी ज्योग्राफी है उतनी जल्दी हम उसको कचरा भी कर देते हैं एंड फिर उसी के बाद हम अपने घरों में बैठ के कहते हैं इंडिया में कहीं जाने के लिए कुछ नहीं है कुछ साफ नहीं है कुछ सुंदर नहीं है मतलब द इंडियन एथिक ऑफ जस्ट थ्रोइंग समथिंग आउटसाइड योर कार विंडो It's so onto normal. the street. What the fuck? मतलब आप अगर उसको थोड़ा सा भी ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करो और मैं ये नहीं कह रहा वो करते हैं और मैं नहीं करता हम करते हैं यार वी आर पार्ट ऑफ द क्राउड इन दैट मतलब ये तो बहुत ही बेसिक सिविल एथिक्स है I know, bro, I बट that conversation for another time, bro. Thank you so much for telling me all these stories. Super, man. bhai, Hey, super, man. super. So good to meet you finally. It's a pleasure, bhai. Yeah. It's a pleasure. I hope you enjoyed. तेरे पता है मुझे मज़ा क्या आ रहा है कि you catch with the conversation. I think that's a very cool thing to have because usually क्या होता है वो same बातें होती हैं but you catch the conversation. There's a lot of meaningful stuff that happens over here. So that's fun, bhai. A lot of fun. I appreciate that. Yeah, Thank you, yeah. guys.